Hi Komal, hi Shivjit. नमस्कार सर. Namaskar, sir. Namaskar, good evening. Welcome to the next in the webinar series of the Spine Wellness and Care Foundation. Please give us a couple of minutes to start. Till such time, may I request Komal to just unmute herself and so that we are sure that we can listen to her. Yeah. Is Right. it okay? Yeah, Dinesh ji. Ji. Dr. Dinesh Suman, can you unmute yourself? Good evening, everyone. Yes. Good evening, sir. Can you hear me, sir? थोड़ा कनेक्शन शायद पुअर है डॉक्टर दिनेश सुमन. It is showing unmute. I don't know how come. It's showing unmute. Hello. हाँ जी Ah, sir. Me know, sir. Not very clear. Can you hear me now? Better. So we can request the other participants to be their videos off, so that video audio. That will not matter that way. Dinesh can have his video off, so others need not necessarily have it off. Sure. Okay. Please give us a couple of minutes so that our panelist, Dr. Dinesh Suman, sorts out the connection issues. Can you hear me now, sir? When can hear you. Yeah. Better. Is it all right, sir? हाँ जी, बिल्कुल. Right, sir. Can hear you. Good evening, everyone. Right, good evening. Very good evening, sir. Can you see the screen, everyone? Yes, sir. Yeah. So good evening, everyone. We are all set to start the next in the webinar series of the Spine Wellness and Care Foundation. As we start, may I request all those who are not speaking to kindly keep their devices on mute so that we do not have a disturbance and others can listen to the panelists.
The topic which was kept today was bladder management of spinal cord injuries, challenges and opportunities. It was specially kept so that we could discuss one of the most important aspects of management of spinal cord injuries, bladder management. आप सबको इस स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के अगले वेबिनार में बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक ब्लैडर मैनेजमेंट और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है और ये बहुत एक अहमियत ये बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए ये टॉपिक हमने चुना। तो आइए आज ये वेबिनार अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। So, introducing our panelists, Dr. Dinesh Suman. He is a consultant neurourologist and head of the Department of Urology, Indian Spinal Injury Center, New Delhi. He is an MBBS, MS, DNB, MCH in urology, and has special interest in neurourology in persons with spinal cord injury. Botulinum toxin injection and sacral neuromodulation are his other interests. डॉक्टर दिनेश सुमन, आपका बहुत स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। आप एक कंसल्टेंट न्यूरो यूरोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में, और इस टॉपिक पे आप विशेष इंटरेस्ट रखते हैं। देन वी हैव टू वेरी एक्सपर्ट consumers who represent the Consumer Committee of the Spinal Cord Society and also the Spine Foundation. Mr. Shivjit Singh Raghav, he is the Patient Education Coordinator and Peer Counselor, Indian Spinal Injury Center, New Delhi. He is the founder member of the Asian Spinal Cord Network. He is the member Psychology Special Interest Group, International Spinal Cord Society. He is the Vice President, the Spinal Foundation. He is the member Executive Committee and President Consumer Committee, Spinal Cord Society, and is the member Executive Committee of Asian Spinal Cord Network. आपका भी बहुत स्वागत है शिवजीत जी। आप ना खाली पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेश में भी आप विख्यात हैं और एक रिहैब एक्सपर्ट और कंज्यूमर के नाते, और आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं और कई सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। Then we have Dr. Komal Kamra, who is alumnus of University of Delhi, where she did her higher studies in zoology and research in microbiology. Taught for 44 years in Khalsa College and retired as associate professor of zoology 2 years ago. She has several publications, several chapters to her credit, presentations in conferences and supervision of PhD students. She has organized 3 international events. So after she had a very successful career, she still continues to have it. She had a spinal injury and in the last 27 years has been on a wheelchair. However, she chose to continue not only her academic career, but added a strong social element to her life. She loves to travel, makes friends, and live life king size. So among her social commitments is as peer counselor at Indian Spinal Injury Center, member of Spinal Cord Society and its Consumer Committee, founder member Ekatvam, a self-group for epilepsy, secretary and founder member, the Spinal Foundation, a pan-India group for persons with spinal cord injury, and a national awardee in 2004. कोमल कामरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ना खाली छात्रा रही, पर वहाँ आपने पढ़ाया भी खालसा कॉलेज में, और अभी 2 साल पहले वहाँ से आप रिटायर हुई। आपने कई कॉन्फ्रेंसेस ना खाली ऑर्गेनाइज किए हैं, बट उनमें आपने पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं। आप अपनी 39 साल की जिंदगी के बाद जब आपको स्पाइनल इंजरी हुई, तो बाद के 27 साल आपने सोशल एक्टिविटीज में ही बहुत इंटरेस्ट लिया, और आप
की कई सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं जिसके लिए आप न खाली भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी विख्यात हैं. So we start with today's webinar. We know that spinal injury has been described as a devastating ailment and has been recognized since antiquity. It was initially described as an ailment not to be treated, and the view prevailed till early 20th century. तो रीढ़ की हड्डी की चोट एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है और पहले कहते थे ये एक बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं होना चाहिए. For example, during the First World War, 90% of the patients died within 1 year and only 1% survived more than 20 years. पहले विश्व युद्ध में 90% रोगियों की 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई और खाली 1% ही 20 वर्षों से अधिक जीवित रहे. दूसरे विश्व युद्ध में सर लुडविग गटमन और सर जॉर्ज बेडब्रुक ने दिखाया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड को अगर ठीक से मैनेज किया जाए तो वो एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं. So it was these two stalwarts who revolutionized spinal cord injury management per se. Bladder management is very important because renal failure used to be the leading cause of death and is still the 4th leading cause in developed countries. It is associated with significant morbidity. तो ब्लैडर मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीनल फेलियर अगर ठीक से अगर ना मैनेज करे तो रीनल फेलियर हो सकता है. तो इसलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. So in this study on the quality of life of people with spinal cord injury, they could show that significant numbers of the population had bladder problems, as many as 44%. And they not only influence rehabilitation outcomes, but also subsequent health-related outcomes and opportunities of interpersonal relationships and social participation, which in turn can jeopardize the quality of life in these spinal cord injury patients. तो जब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ब्लैडर अगर ठीक से मैनेज ना हो तो ये काफी इफेक्ट कर सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को. और वैसे भी तकरीबन आधे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रगण इसके कॉम्प्लिकेशन से परेशान रहते हैं. तो ये एक अच्छा ब्लैडर मैनेजमेंट प्रोग्राम इसलिए महत्व रखता है. So, with this context, as a renowned expert in this field, could you provide an overview of how the normal bladder and sphincter work and the effect of spinal cord injury on their function? Good evening, everyone. Thank you so much, sir. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारे ब्लड को फिल्टर करके 2 किडनीज या गुर्दे होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दाएं और बाएं स्तर पर ऊपरी पेट में स्थित होते हैं. ये हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी के साथ मिला के यूरिन बना के निकालते हैं. ये यूरिन 2 पतली ट्यूब यानी यूरेटर से निकलकर हमारे मूत्राशय यानी ब्लैडर में पहुंचता है और ब्लैडर से ये बाहर निकलता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं. तो यूरिन प्रोडक्शन हमारे शरीर की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में पानी और नमक की मात्रा और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है. हमारे हार्ट, लंग और ब्रेन की तरह किडनी भी एक वाइटल स्ट्रक्चर है और किडनी से बनकर निकलने वाला सभी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से निकलता है और मूत्राशय हमारे पेट के निचले भाग में स्थित होता है. स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के बाद मूत्राशय की नर्व्स को जब इंजरी होती है तो उसमें 2 तरह की चेंजेस आते हैं. जैसा कि सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र जानते हैं कि हाई कॉर्ड इंजरी और लो कॉर्ड इंजरी में हमें ऊपरी कॉर्ड इंजरी में स्पास्टिक ब्लैडर, स्पास्टिक पैरों के चेंजेस नजर आते हैं. उसी तरह से ब्लैडर में भी ओवर एक्टिविटी नजर आती है, जिसकी वजह से अक्सर यूरिन फ्रीक्वेंटली लीक करता रहता है. लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी यानी कमर के निचले हिस्से में चोट लगने से एक नॉन रिफ्लेक्सिक रिलैक्स्ड या फ्लैसिड ब्लैडर मिलता है, जिस ब्लैडर की मसल्स की मांसपेशियां शिथिल होती हैं. जैसे पैरों में शिथिलता होती है उसी तरह ब्लैडर में भी शिथिलता होती है, जो गुब्बारे की तरह से फूलता जाता है. नेक्स्ट प्लीज.
ब्लैडर के असेसमेंट में दो इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं कि ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने वाला यूरिन यानी पेशाब की मात्रा और उसके द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना पड़ता है। और यही कारण है जो आगे चलकर यूरिन से संबंधित तकलीफें, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस यानी ब्लैडर और किडनी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखने की बात यह है कि यूरिनरी ब्लैडर की मैनेजमेंट का असर आपकी किडनीज और किडनी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर पड़ता है। ये आपके स्वास्थ्य और आपकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ यानी आपके जीवन पर भी असर डाल सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। ब्लैडर का काम यूरिन को इकट्ठा करना है, समय पर निकालना है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जब ब्लैडर अपना काम नहीं कर पाता तो उसे अगर सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो ये बहुत अधिक दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर्स के बाद साइंस ने बहुत सारे ऐसे लेसन सीखे और आज हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हमारे सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र अपने ब्लैडर को बहुत अच्छे तरीके से एक सिंपल कैथेटर या कुछ और दवाओं के जरिए मैनेज कर सकते हैं। Thank you, Dr. Dinesh Simon. You informed about the importance of doing a proper evaluation of the spinal cord injured bladder. क्या आप हमारे मित्रगणों को बता सकेंगे कि ये कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड ब्लैडर को एवेलुएट करने के लिए? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो ब्लैडर में चेंजेस होते हैं उसको असेस करने के लिए दोस्तों इवैल्यूएशन बहुत ही सिंपल और सरल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री, कोरिलेशन विद द लेवल एंड सिवियरिटी ऑफ इंजरी, यानी आपकी चोट किस स्तर पर है और कितनी कंप्लीट या इनकम्प्लीट है। उसके साथ साथ जो न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जांच में सिंपल यूरिन टेस्ट जो इन्फेक्शन देखने के लिए किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट जिससे किडनी के फंक्शन के बारे में पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, यूरोफ्लोमेट्री या यूरोडायनेमिक्स एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट आमतौर से एक ही दिन में अस्पताल में हो सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र हमारे पास आते हैं तो at one point in time we can provide a complete assessment and guidelines for treatment for all these people. Renal scan एक ऐसी टेस्ट है जो कुछ केसेस में अगर किडनी के फंक्शन में इंपेयरमेंट आए तो उसमें स्पेशली करने की जरूरत पड़ती है, पर आमतौर से अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरोफ्लो एंड यूरोडायनेमिक्स आर द थ्री इंपॉर्टेंट टेस्ट which will give us broad guideline. हमारे को समझने के लिए ये तीन टेस्ट आवश्यक है। ये टेस्ट ना सिर्फ शुरुआत में बल्कि फॉलो अप में हर साल रिपीट किए जाने चाहिए ताकि हमारी किडनीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हम उन पर नजर रख सकें। सर, थैंक यू डॉक्टर दिनेश सुमन। कैन यू आल्सो आउटलाइन द ब्लैडर मैनेजमेंट ऑप्शंस? यस दोस्तों, ब्लैडर के मैनेजमेंट की ऑप्शंस बहुत ही सरल है। हमें अपने ब्लैडर की मैनेजमेंट को दो तरीके से पहचानना है। ब्लैडर के स्टोरेज और एम्प्टिंग फेजेस को हमने मैनेज करना है। ब्लैडर के चेंजेस को मैनेज करने के लिए हमें पहचानना है कि हमारी इंजरी के हिसाब से हमारा ब्लैडर हाई रिस्क ब्लैडर है या लो रिस्क ब्लैडर है। हाई रिस्क ब्लैडर वो होते हैं जो हाई कॉर्ड इंजरीज में होते हैं, जिनमें आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता ज्यादा होती है। इनको पहचानने के लिए लेवल ऑफ इंजरी और यूरोडायनेमिक्स के कोरिलेशन से हम उसको देखते हैं। जो लोअर कॉर्ड इंजरी के ब्लैडर्स हैं जिनमें ब्लैडर शिथिल होता है, ऐसे ब्लैडर अक्सर लो रिस्क ब्लैडर्स होते हैं। किसी भी ब्लैडर के मैनेजमेंट को पहचानने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमें पेशेंट के ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस को इवैल्यूएट करना है। पेशेंट की जनरल कंडीशन, पेशेंट की मेंटल कंडीशन, क्या वो बातें समझ रहा है, उसके हाथ के फंक्शंस कैसे हैं, उसकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पेशेंट शहर में या गांव में रहता है, उसके आसपास की सुविधाएं कैसी हैं। इन सब चीजों को जानकर हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 3 तरह की कैथेटर की सुविधाएं हैं और आपकी सुविधा और आपकी कंडीशन के हिसाब से इनके ये फायदे हैं, और उनके हिसाब से हम सेफ्टी और कन्वीनियंस इन 2 चीजों को ध्यान में रखकर पेशेंट की मैनेजमेंट तैयार करते हैं। लास्ट में गोल्स ऑफ ब्लैडर मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किडनीज को और यूरिनरी ट्रैक्ट को सेफ रखना है।
क्योंकि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का स्वास्थ्य उसकी किडनीज की हेल्थ पर डिपेंड करता है, और उसके लिए हमें ब्लैडर को सही समय से खाली करना और सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन की प्रिवेंशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉन्टिनेंस एक इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन इट इज मोर ऑफ ए न्यूसेंस देन इट इज ऑफ ए हर्ट टू द इंडिविजुअल। लेकिन फिर भी पेशेंट के साथ मिलकर हम उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन फॉर्मेशन, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया एंड किडनी फंक्शन इंपेयरमेंट, इन चीजों पे ध्यान दें तो हमारे पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद भी आज हम देखते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल भी बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। सर, Thank you, Dr. Dinesh Suman. So you have mentioned about the various goals of bladder management, especially protecting the upper urinary tracts. And before the management of spinal cord injury was revolutionized, since bladder management was not properly done, most of the people succumbed to renal failure because the bladder was not properly managed. And so in addition to preventing complications of upper urinary tracts, maintaining continence and avoiding frequency and urgency, you mentioned, are very important goals of bladder management. And preventing and treating complications such as urinary tract infections, stones, strictures, and autonomic dysreflexia are also very important. So Shivjit ji, अगर आप हमारे मित्रगणों को बताना चाहेंगे कि इसका कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या है, जो ब्लैडर मैनेजमेंट है उसको कंज्यूमर्स किस तरह देखते हैं, कैसे कर सकते हैं और उसके क्या लक्ष्य होते हैं उनके लिए? देखिए, एज ए कंज्यूमर यानी एज ए पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मैं खुद, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मेरा ये मानना है कि एक तो बहुत जरूरी है कि जैसा डॉक्टर दिनेश सुमन ने बताया कि अपनी किडनी और सिस्टम्स का बहुत बचाव रखना लंबे समय के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सामाजिक जीवन है, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि उनको सही तौर पे ब्लैडर मैनेजमेंट का अंदाजा नहीं होता, उनको अच्छी तरह से हॉस्पिटल्स में जहां वो रहे हैं, जहां पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, जो आम हॉस्पिटल्स में उनको गाइडेंस नहीं मिली है, वो लोग घर से नहीं निकलते और वो समाज में नहीं जा पाते, कहीं जॉब नहीं कर पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उस लक्ष्य के लिए भी ब्लैडर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि उसको डिटेल में मैनेजमेंट समझाया जाए, जिससे कि अपनी किडनीज और इनका बचाव रखते हुए जो हमारे कम से कम इन्फेक्शन हो, वो तो है ही है मुद्दा, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज में कहीं भी निकलने में उनकी, यानी विदाउट कंट्रोल भी वो किस तरह से बेहतर मैनेज कर सकें और बाहर आ जा सकें, वो बहुत जरूरी मुद्दा है ब्लैडर मैनेजमेंट का। धन्यवाद शिवजीत जी। कोमल जी, आप कुछ इस पे और ऐड करना चाहेंगे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पे? मैं बताना चाहूंगी कि अगर जैसे मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस में आप शेयर करूं तो अगर मेरा ब्लैडर मैनेजमेंट मुझे नहीं सिखाया जाता तो मैं वापस काम पर नहीं जा सकती थी, मैं घर से भी बाहर नहीं निकल सकती थी, और अगर मुझे अपने घर में मैं अकेले कमाती थी तो उस पैसे को करने के लिए मुझे ब्लैडर मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक था। ऑल्सो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से मिलने जा सकें, कहीं बाहर हम बिना रुकावट के, कि मतलब मेरा ब्लैडर ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा, मुझे उस चीज को बहुत अच्छे से समझना था और करना था। वो सब करने के लिए सोसाइटी में जीने के लिए, सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए, ताकि बाहर पता ही ना चले कि हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी था हमारे लिए। और मुझे लगता है कि ये सभी के साथ ऐसा ही होता होगा, चाहे वो पढ़ाई के चरण से गुजर रहे हैं, चाहे वो काम के चरण से गुजर रहे हैं। और भारतवर्ष में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जब तक आप कमा नहीं सकते, आपकी वैल्यू नहीं है, और वैल्यू के अलावा आप अपना घर नहीं चला पाएंगे। दोनों लोग कमाते हैं तो काम चलता है,
तो अगर एक ब्लैडर को ही लेकर बैठ जाएगा और दूसरा उसको मैनेज करता रहेगा तो फिर कमाई हो ही नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और मेरे लिहाज से मुझे बहुत अच्छे तरीके से शुरू में ब्लैडर मैनेजमेंट के तरीके सिखा दिए गए थे और मैंने आज तक 27-28 इयर्स होने वाले हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। Thank you, Komal, Sure. for giving your lived experience and sharing it with our participants here. Dr. Dinesh Suman, a spinal cord injured would go through various phases, like the phase of spinal shock immediately after the injury. Then there is an acute phase after the spinal shock. And then the patient is in the hospital and then gets discharged and is at home. So in these different phases of spinal shock, after spinal shock, before discharge and at home, does the modality of bladder management differ? तो हमारे हिंदी भाषी मित्रगण के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं कि जब चोट लगती है तो उसके बाद डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हैं पर्सन्स विद स्पाइन कॉर्ड इंजरी, तो क्या हर फेज में ब्लैडर मैनेजमेंट की एक अलग टेक्निक या मोडालिटी हम प्रेफर करते हैं? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें पहली बार ब्लैडर के कारण होने वाली सीरियस मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के बारे में समझ आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टेराइल इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन और उसके पश्चात क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के बारे में जानने के पश्चात हमें मोटे तौर पे एक बात समझनी है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड ब्लैडर इज लाइक ए पैरालाइज्ड ब्लैडर। इट इज ए ब्लैडर व्हिच हैज लॉस्ट इट्स कैपेबिलिटी टू पुश यूरिन आउट, यानी ये ब्लैडर अपने आप यूरिन नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए हमें किसी न किसी एक प्रकार का कैथेटर यानी इंडवेलिंग कैथेटर या इंटरमिटेंट कैथेटर इस्तेमाल करना है। बस ये अगर हम प्रिंसिपल समझ के चलें, बाकी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की जनरल वेलबींग के हिसाब से हम उसे इंडवेलिंग और इंटरमिटेंट में स्विच ओवर कर सकते हैं। अर्ली फेज में आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब पेशेंट ट्रॉमा से गुजरता है, ऑपरेशन से रिकवर हो रहा है, उस समय इंडवेलिंग कैथेटर पेशेंट की केयर और रिकवरी में मदद करता है। लेकिन जब पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, फिजियोथेरेपी में जाने लगते हैं, बाहर घूमने के लिए जाने लगते हैं, तो कैथेटर और बैग लगा के रखना आमतौर से हमारे मरीज पसंद नहीं करते और इसलिए वो क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की तरफ मुखातिब होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के बारे में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कोमल जी ने और शिवजीत जी ने कही, हमारी इंडिया में आमतौर से अधिकतर अस्पतालों में पेशेंट्स को क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन सही से करना नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण ज्यादातर लोग या तो गलत टेक्निक से करते हैं, प्रॉब्लम होने पर छोड़ देते हैं। हमने स्पाइनल इंजरी सेंटर में एक सर्वे किया जिसमें हमने 100 पेशेंट्स जो बाहर से ऑपरेट होकर हमारे यहाँ आए, हमने देखा कि उसमें से 95% लोगों ने ब्लैडर मैनेजमेंट और सीआईसी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि स्पाइनल इंजरी सेंटर में ट्रीट होने वाले हमारे 100 में से 97% पेशेंट्स थे जो 2 साल से अधिक से स्वयं सीआईसी कर रहे थे। इसके लिए हमने एक क्वांटिफाइबल काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है, यूरोलॉजी नर्सेस का प्रोविजन किया है, जो कि प्रॉपर तरीके से पेशेंट को जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग अंडर सुपरविजन देते हैं, अपने हाथ से उन्हें सीआईसी करना सिखाते हैं और उनकी सीआईसी करने के तरीके को अप्रूव करते हैं। जब पेशेंट कॉन्फिडेंटली सीआईसी करना सीख जाते हैं, उसके बाद भी हम उन्हें डिस्टेंस सपोर्ट से रोजमर्रा होने वाली तकलीफों में सहारा देते हैं, ताकि उन्हें घर पे जाके भी कोई दिक्कत हो तो वो हमसे बात करके सहारे से ये कर सकें। इससे पेशेंट को बड़ा बल मिलता है और हमारे सभी पेशेंट्स आज सैकड़ों सालों से, दसियों सालों से, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से सीआईसी कर रहे हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। हमारे सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स हैं जो सीआईसी पे अपने जीवन के साथ साथ अपने कॉलेज गोइंग, अपनी वर्क लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ में, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो फॉरेन में आज एजुकेशन के लिए गए हैं और वो स्वयं अपने आप को क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन से बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग फेजेस में जब हम जाते हैं तो पेशेंट अपनी जरूरत के हिसाब से क्लीन या इंडवेलिंग कैथेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को सफर में जाना है तो कुछ दिन के लिए इंडवेलिंग कैथेटर लगा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के
हाथ काम नहीं करते हैं, जैसे क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स हैं, अभी कमजोरी है, तो ऐसे पेशेंट्स में या तो घर का कोई सदस्य या केयर टेकर उन्हें मदद कर सकता है, या हम एक पेट से लगने वाली डायरेक्ट ब्लैडर में सुप्राप्यूबिक कैथेटर की ऑप्शंस भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन अपने आप में एक रिवर्सिबल ऑप्शन होती है, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे चीजों में सुधार आता है हम एसपीसी हटा भी सकते हैं। तो सभी मित्रों से प्रार्थना है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अगर आप कोई भी कैथेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये आपके लिए सेफ नहीं है, जब तक कि यूरोलॉजिस्ट यूरोडायनेमिक्स करके आपको क्लियर नहीं करता है। तो मेरे सभी मित्र ध्यान रखें कि हर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट के लिए इंडवेलिंग कैथेटर, चाहे वो यूरिथ्रा से डालें या सुप्राप्यूबिक रास्ते से डालें या इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन इस्तेमाल करें, कैथेटर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जब तक कि सेफ रिफ्लेक्स वाइडिंग हम यूरोडायनेमिक्स से प्रूव नहीं करते। Thank you, Dr. Dinesh Suman. For the benefit of our participants, would you want to also enlighten on why we prefer clean intermittent catheterization in the long run once the patient gets back to community and is at home? So, मित्रगण, डॉक्टर दिनेश सुमन से हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने बताया कि या तो इनवेलिंग कैथेटर या इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन आप यूज कर सकते हैं, पर जनरली अस्पताल से जाने से पहले जो लोग खुद कैथेटराइजेशन कर सकते हैं या जिनके पास केयर गिवर्स हैं जो कैथेटराइजेशन कर सके, तो हम कहते हैं कि आप इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करिए। ऐसा क्यों? ये हमारा सवाल है डॉक्टर दिनेश सुमन को। सर, जब वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि यूरिथ्रल कैथेटर डालने से हम ब्लैडर के फुलाव को, डिस्टेंशन को रोक सकते हैं और उससे संबंधित तकलीफों से बच सकते हैं, तो ये कैथेटर मेंटेन करने की प्रोसेस शुरू की गई। शुरू में ये तरीका स्टेराइल तरीके से किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया कि इन्फेक्शंस और कैथेटर रिलेटेड इंजरीज बहुत कॉमनली होती हैं। सभी मित्रों की जानकारी के लिए, अगर एक हम यूरिथ्रल कैथेटर रखते हैं तो उसमें 3 से 5% रिस्क ऑफ इंफेक्शन रोज का होता है, यानी 10 दिन में 30 से 50% रिस्क ऑफ इंफेक्शन होता है और 20 से 30 दिन में रफली 80 से 100% रिस्क ऑफ इंफेक्शन होता है। हमारे कैथेटर के ऊपर एक बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है और फॉरेन बॉडी होने की वजह से ये हमारे ब्लैडर में इंजरी प्रोड्यूस करता है, जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करके इंफेक्शन की तरफ बढ़ाती है। कैथेटर के साथ इंफेक्शन को रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में परमानेंट कैथेटर निकालकर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन शुरू किया गया, लेकिन शुरू में ये कैथेटराइजेशन नर्सेज या टेक्नीशियन के द्वारा स्टेराइल तरीके से किया जाता था। उसमें बहुत समय लगता था, एक प्रॉपर टेक्निक होती थी और वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही संभव होता था। लेकिन डॉक्टर जैक लैपिडस ने 1970s में अपने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा कि पेशेंट्स अगर अपने हाथ से खुद कैथेटर डालते हैं और किसी वजह से अगर कैथेटर हाथ से गिर जाए, उसे साबुन पानी से धो के दोबारा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी उनमें इन्फेक्शन नहीं होता। तो जैक लैपिडस ने जब उन पेशेंट्स को स्टडी किया तो उसमें दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात पाई गई, ब्लैडर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक ही कारण से होती हैं, अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन ज्यादा इकट्ठा हो जाए और उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाए। ब्लैडर का हाई प्रेशर स्टोरेज सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे जब ये इस्तेमाल में आया तो हर पेशेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग था। एक परमानेंट इंडवेलिंग कैथेटर और यूरिन बैग लगाकर चारों तरफ जाना, घर पर रहना, घर के बाहर जाना, स्कूल कॉलेज में, इट इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एम्बैरेसमेंट बट इट इज ऑल्सो वेरी इनकन्वीनियंट। ऐसा करना बहुत खुद के लिए बहुत तकलीफदेह बात है, प्लस देखने में भी हर मरीज को अच्छा नहीं लगता। यंग लड़के और लड़कियों के लिए सेल्फ इमेज के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग अपने आप को अच्छा और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल कैरिंग ए बैग। क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एक ऐसा अद्भुत वरदान है जो हमारे सभी पेशेंट्स एक बहुत सरल तरीके से करते हैं। जितना समय हमें टूथब्रश करने में लगता है उतनी देर में हम क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। बाथरूम में जाकर हम स्वयं यूरिन पास करते हैं या हम एक कैथेटर निकाल के यूरिन पास करके और उस कैथेटर को डिस्कार्ड करके चले आते हैं, किसी को पता नहीं चलता।
इससे हमारे मरीजों को बहुत कॉन्फिडेंस और बल मिलता है एंड दे आर एबल टू कैरी ऑन विद देयर नॉर्मल लाइफ with confidence in front of their family, friends, and at the place of work. Thank you, Dr. Dinesh Suman. For the benefit of friends who are more well-versed with English, Dr. Dinesh Suman has mentioned how bladder management gradually evolved from an indwelling catheter once the bladder management was revolutionized to clean intermittent catheterization. Initially, the indwelling catheter was used, but there were disadvantages of repeated urinary tract infection, which can be seen more often with indwelling catheter. And there can be other complications like bladder stones and remotely also bladder cancer with indwelling catheterization. So gradually, they moved to sterile intermittent catheterization, but that was not practical. So we have moved to clean intermittent catheterization, which can be done by the individual himself 4 to 6 times per day based on the bladder diary, so that the volume per catheterization is 400 ml to 500 ml. Generally, one would want to also monitor the fluid intake and avoid excess intake of coffee and other products per se. Dr. Dinesh Suman, just one line about suprapubic catheter before we move forward. Sir, suprapubic catheter is a permanent form of catheter which is inserted directly into the bladder. जिन पेशेंट्स में लंबे समय तक कैथेटर रखने की जरूरत या नीड महसूस होती है, उनमें नीचे यूरिन के रास्ते से कैथेटर रखने से ऐसा देखा गया है कि यूरिनरी पैसेज की इंजरी, चोट लगने की संभावना, कैथेटर रिलेटेड इंफेक्शंस ज्यादा होती हैं। ऐसे केसेस में अगर हम नाभि के नीचे बिलो द अम्बिलिकस डायरेक्टली ओवर द ब्लैडर एक होल करके उसके थ्रू एक कैथेटर डालते हैं, ये कैथेटर डायरेक्टली हमारे एब्डोमेन से निकलता है, पेट से निकलता है, तो ये कैथेटर चूंकि क्लीन एरिया से निकलता है, हमारे पेरिनियम यानी निचले हिस्से की तरह से वो एरिया उतना कंटेमिनेटेड नहीं होता, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस कम पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेशेंट का जेनिटेलिया फ्री हो जाता है। यानी बहुत से लोग जिनमें इंडवेलिंग कैथेटर की जरूरत है, जो किसी कारण से सीआईसी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी सेक्सुअली अट्रैक्टिव रहना चाहते हैं, सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जेनिटेलिया फ्री हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो एसपीसी इज ए लॉन्ग टर्म परमानेंट कैथेटर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द एब्डोमेन एंड इट इज सेफ। इसकी केयर और ध्यान बाकी कैथेटर की तरह से रखना होता है। इसे रफली 2 से 4 हफ्ते में चेंज करते हैं। अगर हम ऑल सिलिकॉन कैथेटर यूज करते हैं तो हम इसे और लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं, और इसके साथ हमें उसी तरीके से कैथेटर फिक्सेशन, हाइजीन और क्लीनलीनेस और फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना है, ताकि इसमें किसी तरह की स्टोन फॉर्मेशन या इंफेक्शन रिलेटेड इश्यूज ना हो। So thank you, Dr. Dinesh Suman. For people who need permanent drainage because they can't do intermittent catheterization themselves repeatedly, or they do not have the access to a caregiver who can do that for them, then rather than having an indwelling transurethral catheter, a suprapubic catheter is better because there are less complications. That's what you had mentioned to everyone. Now, 1 minute on which type of catheter should be used. We are talking about people who initiate the bladder management in the hospital. Sir, दोस्तों, कैथेटर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम समय से इस्तेमाल करते हैं, हम टाइमली ब्लैडर को खाली करते हैं और कैथेटर डालने की प्रोसेस को बहुत ही स्लो, जेंटल और एडिक्वेट लुब्रिकेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो मैं अभी सभी मित्रों को कहना चाहूंगा कि अगर हम प्लेन कैथेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह का नैलेटन प्लेन कैथेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सब कैथेटर पीवीसी के हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। अगर सिलिकॉन कैथेटर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। हर पेशेंट को चाहिए कि वो अलग अलग कैथेटर इस्तेमाल करके देखें और अपना एक्सपीरियंस जनरेट करें। जिस तरह के कैथेटर से उन्हें सरलता, सुविधा महसूस हो, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन्हें सरल महसूस हो, उस तरह का कैथेटर इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी भी तरह का कैथेटर आपके ब्लैडर को खाली करने के लिए मात्र एक ट्यूब है।
आप अगर सही तरीके से स्लो और जेंटल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही अमाउंट में ल्यूब्रिकेशन। हमने एक स्टडी में पाया कि हमारे देश में ल्यूब्रिकेशन की मात्रा आमतौर से लोग 2 से 3-4 ml इस्तेमाल करते हैं। मित्रों याद रखें, एक बार CIC करने के लिए, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के लिए, आपको अंदाजन 10 से 15 ml कम से कम यूरिथ्रा में डालकर यूरिथ्रा को फुलाना चाहिए, ताकि कैथेटर जेली में तैरता हुआ आपके ब्लैडर में जाए। अगर आप कैथेटर में जेली सही नहीं लगाते हैं तो कैथेटर की रगड़ खाने से यूरिथ्रा में एब्रेजन और इंजरी होते हैं, जो आगे चल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और यूरिथ्रल ब्लीडिंग और बाकी अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। उसी तरीके से परमानेंट कैथेटर्स में ऑल सिलिकॉन कैथेटर्स, प्लेन सिलिकॉन कोटेड कैथेटर्स, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। कॉस्ट डिफरेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऑल सिलिकॉन कैथेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसे कुछ लंबे समय के लिए रखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी उसी तरह के ध्यान और केयर की जरूरत है, अदरवाइज उसी तरह से कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हाइड्रोफिलिक कोटेड कैथेटर सर हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं तो हाइड्रोफिलिक कोटेड कैथेटर भी काफी आरामदायक और कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन के चांसेस भी उनमें साधारण कैथेटर की तरह ही होते हैं। सर, Thank you, Dr. Dinesh Suman. You mentioned that more important than the type of catheter, whether plain catheter or silicone catheter, which is used more often in our country, is the technique with which the catheterization is done. And that should be meticulous, and people should learn that properly and implement that properly. So, in bladder management also, we need a lifelong urological follow-up, and that is very important. We face various challenges in comprehensive management of spinal cord injury, especially in emerging countries. And if we look into bladder management specifically, I would want to ask the panel on what are the main challenges of bladder management in emerging countries like India. So मित्रगण, हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैनेजमेंट में कई चैलेंजेस, चुनौतियां हम फेस करते हैं। तो मेरा पहला सवाल इस बार फिर डॉक्टर दिनेश सुमन से कि क्या मेन चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं ब्लैडर मैनेजमेंट में। ब्रीफली डॉक्टर दिनेश सुमन। सर, सबसे पहली चुनौती जो हम महसूस करते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र जब कभी भी इस चोट के पश्चात स्पाइनल ऑपरेशन से उभर कर हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में स्पाइन यूनिट्स में कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल नहीं है। अधिकतर बहुत बड़े बड़े अस्पतालों से भी पेशेंट्स को कैथेटर पर ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बिना यूरोलॉजिस्ट से मिले, बिना यूरोलॉजिस्ट की गाइडेंस के। फॉलोअप में भी किसी तरीके से यूरोलॉजिकल गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। हमने अपने यहाँ एक स्टडी की जिसमें 90% patients had never seen a urologist in their 2 to 5 years time after their spinal cord injury. ये बहुत दुख की बात है। हर स्पाइन यूनिट का फर्ज है कि वो अपने पेशेंट्स की केयर के लिए पेशेंट्स को समझाएं कि आपकी चोट के बाद आपको ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल तकलीफें हो सकती हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी के 95 to 97% के हिसाब से आपके लिए लाजमी है कि आप यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और उनकी गाइडेंस में लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रहें। ये आपके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसके अलावा सर, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, हमारे देश में हमारे जनरल यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस और जीपीज को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। इसके लिए उनकी केयर में दिक्कत आती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि लीडिंग स्पाइन सेंटर्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपकी गाइडेंस में, जैसे अभी हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम लोगों तक पहुंचते इस तरह की जानकारी पहुंचाएं, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को ट्रीटमेंट में डिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि दूर दराज रहने वाले स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र भी अपने ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में जागरूक हों और जरूरत पड़ने पर डिस्टेंस सपोर्ट में हमसे अपने डॉक्टर के थ्रू मदद ले पाए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी कैथेटर, जेली चीजों की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। रीयूज ऑफ द कैथेटर भी बहुत सरल बना देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान और जानकारी का अभाव, गाइडेंस का अभाव सर।
धन्यवाद डॉक्टर दिनेश सुमन। शिवजीत जी, आप बताना चाहेंगे कुछ अपने थॉट्स की, क्या मेन चुनौतियां हैं हमारे देश में ब्लैडर मैनेजमेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड के लिए? थैंक यू डॉक्टर शाबरा। मैं डॉक्टर दिनेश सुमन साहब को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने वाकई बहुत डिटेल में एक एक चीज को बताया है। वाकई चैलेंजेस जो सबसे ज्यादा जो फेस करते हैं, मामला वही है कि उनको सही जानकारी सही वक्त से नहीं मिल पाती, और कई बार वो इतनी देर हो चुकी होती है कि मामला बहुत सीरियस हो जाता है, यानी तब तक वो किडनीज पर इन तरफ भी असर होने लगता है। और बात वही आती है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में सब जगह वो ब्लैडर एजुकेशन की सुविधा नहीं है, और उनको, हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि इधर कुछ मैंने बदलाव देखा है, और अब ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि सीआईसी के बारे में अब जानकारी रखने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ये बड़ा चैलेंज है कि उनको समय से इस बात की जानकारी हो। दूसरी बात ये है कि जो सीआईसी की जिसकी बात इतनी डिटेल में हुई, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जो बाहर से आते हैं जिनका इलाज यहाँ होता है। हम लोग उनको प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से संबंधित विभाग हैं या हॉस्पिटल से, वहां सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग कई बार उनको वो सारी जानकारी नहीं समझाते कि अगर वो ये चीज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। यानी हम केवल टेक्निक पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि जो उनको जिस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्यों ये आपको करना है, इसको ना करने से क्या होगा, उस पे कई बार हम लोग उतना स्ट्रेस नहीं देते जितना जरूरी होता है। और कई इसी वजह से कई लोग जाने के बाद सीआईसी छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि हॉस्पिटल में रहते हुए ये एक इलाज का हिस्सा है। उन्हें कई बार ये पक्के तौर पे नहीं समझ में आता कि जाने के बाद भी अगर हमने इसको ये जारी रखना और नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि जो कॉस्ट की जो बात है, यानी जैसे दिनेश सुमन साहब ने कहा कि जेली, अब वो जेली इतनी महंगी आती है और वो बड़ी जल्दी 2 या 3 बार में 4 बार में एक जेली की ट्यूब खत्म हो जाती है। वो भी एक बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट, मतलब इस तरह के जो चीजें हैं उसकी वजह से भी कई लोग उसको आगे नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि पब्लिक प्लेसेस में कई जगह वो प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं मिल पाते। वो भी एक कारण होता है जिससे कई लोग जो है वो धीरे धीरे सीआईसी से इंटरमिटेंट कैस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पे काम करना जरूरी है। Thank you, Dinesh ji and Shivjit ji. You talked about the challenges of bladder management in emerging countries like India. Both of you emphasized about awareness about proper management of the neurogenic bladder. And Dr. Dinesh Suman especially emphasized that many patients are discharged without counseling for a clean intermittent catheterization and without having them trained in this regard. So it was also pointed out that many people who start clean intermittent catheterization, they subsequently, for various reasons, they stop doing it, stop practicing it, and return to either an indwelling catheterization or evaluation by something which is not recommended, that is pressure, or what we call as the Credes maneuver. Shivjit ji also mentioned about the costs of doing intermittent catheterization and the facilities in the public places, the infrastructural facilities not being freely available where people could do intermittent catheterization. Komal ji, do you have anything else to add to these challenges? हाँ, मुझे एक चीज बतानी है कि हमने शायद ये एम्फसाइज नहीं किया कि जब हम सीआईसी करते हैं तो हम डर से ना रह, पानी ना पूरा पिए, फ्लूइड इनटेक हमारा एडिक्वेट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ब्लैडर भरता रहेगा और खाली आप हिसाब से करते रहेंगे। अब मैं हिसाब की बात बता रही हूँ और ये लिव्ड एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप
लेडीज के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है ऐसी जगह ढूंढना जहां पर वो CIC कर पाए। और कई बार हमारे कपड़े उस हिसाब से होते हैं कि हम जैसे सलवार कमीज पहने होते हैं तो शायद बाहर जाकर कहीं पर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने जो एक तरीका अपनाया, और मैं डॉक्टर दिनेश सुमन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बाद वो इसका जवाब जरूर दें। मुझे 8-9 घंटे कॉलेज में रहना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, 5 बजे सुबह उठे, 1 घंटे में बहुत सारा पानी पिया। ये जो 4 और 6 बार करना, या 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, वो हॉस्पिटल कंडीशंस में ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी कैथेटर करके CIC करके, और फिर मैं उसको मेजर कर लेती हूँ कि जितना मैंने पानी पिया 1 लीटर के आसपास, वो मेरा निकल जाना चाहिए। उसके बाद मुझे 8 आवर्स बिल्कुल परेशानी के बिना मिल जाते हैं। घर वापस आने के बाद 1 घंटे में मैं फिर वही 1 लीटर पानी पी लेती हूँ, और थोड़ा जल्दी कैथेटर करके CIC करके, ताकि सोने से पहले, सोने वाले जो 7 या 8 घंटे हैं, मेरे गीले ना बीते। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं जो ये पार्टीशन करा है, मेरी रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन थेरेपी, डॉक्टर सुमन, क्या ये सही है? मैंने बहुत 20 बरस से यही किया है। So Komal ji talked about the importance of fluid balancing, neither taking excess fluids nor taking less fluids, but she also talked about the challenges posed by doing clean intermittent catheterization at workplace or the community, and trying to take the amount of fluid during different different parts of the day, so as to ensure that catheterization is not required very often when in public places. So Dr. Dinesh Suman, आप से कोमल जी ने पूछा कि जो वो टेक्निक फॉलो कर रही हैं, वो क्या आप एडवोकेट करेंगे? जी, थैंक यू। कोमल जी ने जो प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया, ये कोमल जी की नहीं, ये जितने भी हमारे सभी मित्र काम पे जाते हैं, स्कूल कॉलेज और घर से बाहर जाते हैं, उन सब की इसी तरह की समस्या है। और इसको मैनेज करने के लिए हर इंसान ने अपना एक तरीका ढूंढना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमारे ब्लैडर में जो बदलाव आता है उसे एक्सेप्ट करना और समझना जरूरी है, स्टेप नंबर 1। नंबर 2, उसे मैनेज करने के लिए हमें कैथेटर का इस्तेमाल करना है। समय हमने 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, ये एक फ्लेक्सिबल इशू है। इसमें इशू राइट और रॉन्ग का नहीं है, इसमें इशू बीइंग एप्रोप्रिएट है। हर पेशेंट को अपने वाटर इनटेक CIC के शेड्यूल के साथ एक्सपेरिमेंट करना परमिटेड है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मैनेज करना संभव है और करना चाहिए, और जिस तरीके से उनकी शेड्यूल में वो मैनेज कर सकते हैं वो बहुत सही तरीका है। लेकिन ये सब करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वीनियंस ऑन वन साइड एंड सेफ्टी ऑन द अदर। आपको रेगुलरली हर 6 महीने के बाद अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपने ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड और साल में एक बार यूरोडायनेमिक स्टडी करके सेफ प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए। जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं ये आपके लिए कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आपके लिए सेफ भी है, ये यूरोलॉजिस्ट आपके अल्ट्रासाउंड और यूरोडायनेमिक्स करके डिसाइड करेंगे। अगर आपके करने वाले तरीके के हिसाब से आपके ब्लैडर और किडनीज में कुछ गलत बदलाव आ रहे हैं तो वो आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगे और आपको अपने तरीके को एडजस्ट करने के बारे में कुछ और सुझाव देंगे। तो सभी मित्रों से एक चीज समझने की जरूरत है, CIC जब हम करते हैं तो उसका प्रिंसिपल याद करें, जैक लैपेटस ने क्या कहा था, ब्लैडर को हमने कभी भी ओवरफुल नहीं होने देना है ताकि उसके अंदर का प्रेशर अधिक ना बढ़े। 4 घंटे पे CIC करना कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक कन्वीनियंट तरीका है कि आमतौर से हर आदमी 3 से 4 घंटे में यूरिन पास करने जाता है। यूरोडायनेमिक्स के समय हमें पता लगता है कि पेशेंट का सेफ स्टोरेज वॉल्यूम कितना है।
अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो ब्लैडर कंट्रोल की दवाइयां देने से हम ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे पेशेंट सेफली ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। तो अपने फ्लूइड इनटेक को इंटेलिजेंटली एडजस्ट करना, अपने सीआईसी के शेड्यूल को एडजस्ट करना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कोमल जी ने बताया, ये बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट तरीका है और सभी पेशेंट्स को इस तरीके जरूर अपनाने चाहिए, लेकिन साथ साथ यूरोलॉजिस्ट की गाइडेंस में उसकी सेफ्टी भी देखनी चाहिए। Thank you, Dr. Dinesh Suman. You have emphasized that though people can experiment with what works best for them with regard to bladder management and how frequently they need to do it, and what is the amount of fluid intake that they take in, they also need to balance convenience with safety. And for this, a routine urological follow-up is very important, so that by evaluation, the urologist is able to find out that the bladder management technique and protocol that you follow is working well for you and is not compromising the upper urinary tracts. That is one of the main goals of management and having a safe profile. So that is what Dr. Dinesh Suman has emphasized. Dr. Dinesh Suman, access to sophisticated investigations like urodynamics or renal scan in India is very low. So what do you think would be the strategies to overcome the challenge of access to sophisticated and routine investigations for bladder management in an emerging country like India especially? Sir, these investigations are done by equipment which is not really very expensive. I must tell you that India is one country where we have the largest number of CT scans, MRI, PET scans, and all other sophisticated equipments which are far more expensive than the machine which is required for urodynamics. Can you imagine that an MRI machine of 4 to 5 crores, 6 crores compared to a urodynamic equipment costing about 15 lakhs to 20 lakhs? There is no cost comparison. It is not the cost which is a problem. The problem is awareness. The problem is interest of the urologist. Problem is awareness of the people in this particular problem. And I believe it is the onus on the spinal society, spine organizations to create awareness about the needs of the people and let people know that that these conditions, apart from spinal injury, all neurological conditions, all obstructive uropathic conditions require urodynamics. So it is a perfectly feasible, and fortunately, the numbers are increasing. Fortunately, now in most major cities, urodynamics are available. So I can assure you, smaller cities may not have, but major cities in all states have urodynamic equipment. One just has to figure out or ask us, we can give them guidance about it. Every spinal cord injured patient must remember that urodynamics is the gold standard for management of neurogenic bladder, which you cannot avoid. So high risk patients must get it done almost 6 months to 1 year, and a low risk patient must get it 1 to 2 years on a regular basis and take a urologist guidance, and you can enjoy a wonderful long life in a very, very healthy manner. Thank you, Dr. Dinesh Suman. You would also acknowledge that for our friends who live in rural areas and do not have access to going to urban areas, there are very cheap and safe urodynamic techniques which are present. Our colleagues from abroad have also been advocating them, where you could do this by a simple infusion set and just a bag of saline that you could have. So there are methods which are available in which we can do investigations, but a routine investigation is very important, whichever way you do it, to ensure that your kidneys are safe. शिवजीत जी, आपका कुछ इस पे है एक्सेस टू इन्वेस्टिगेशंस पे आपका क्या विचार है? क्या ये चैलेंज पोज करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रगण के लिए? देखिए, बात जैसा डॉक्टर दिनेश सुमन ने कही कि मामला अवेयरनेस का है, जरूरत की चीज का कोई दाम नहीं वाली बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि जैसा आपने देखा होगा, आप स्पाइन सर्जन हैं, तमाम लोग आते ही, आप एमआरआई नहीं भी करना चाहते, वो आगे बढ़ के कहते हैं सर एमआरआई करा दो हमारी। यानी वो एमआरआई इस तरह से वो चारों तरफ फैल गया है
कि उस तरह से दिनेश सुमन ने ठीक कहा कि हम लोग यूरोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस को उतना उस तरह से नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट जो है वो जिस तरह से इसका वो है पर एमआरआई पर यूरोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा है और कई लोग के बस में वो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमको ये देखना है, मैं डॉक्टर दिनेश सुमन से भी ये बात पूछना चाहूंगा कि मेरा ये रहता है कि भाई अगर 6 महीने में आप एक अपना KFT करा रहे हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, और एक आप अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन करा रहे हैं, जिससे कि ये हो जाए कि भाई आप एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली आपकी सिस्टम्स ठीक हैं, तो उसमें यूरोडायनेमिक्स कितने दिन में कराया जाए। एक तो बात ये है, मेरे ख्याल से उसमें जैसा अभी दिनेश सुमन साहब ने लास्ट में कहा कि 1 से जगह 2 साल में भी करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट में मुझे अपना याद पड़ता है, जब मैंने फर्स्ट यूरोडायनेमिक्स कराई थी, मैं RR हॉस्पिटल का जो आर्मी हॉस्पिटल था वहां मैं एडमिट हुआ था और वहां पे यूरोडायनेमिक्स नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे रेफर किया और गंगाराम में केवल उस वक्त यूरोडायनेमिक्स था और वहां पे मुझे कराया गया और वो बड़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हो पाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ केसेस में, जैसा डॉक्टर सुमन ने कहा कि हाई रिस्क केसेस हैं, उनमें जरूरी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो या तो हमको कुछ डोनेशंस के थ्रू उसमें अरेंज करना पड़ेगा या फिर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करके उसको उस चीज को करा सकते हैं अगर जरूरी है तो। In addition to what Shivjit ji has mentioned, Dr. Dinesh Suman, would you also give some brief information about cheaper methods of urodynamic evaluation through innovative methods for the benefit of our participants? सर, यूरोडायनेमिक्स का प्राइम पर्पस है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क फॉर अपर ट्रैक्ट इम्पेयरमेंट, यानी कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आगे चलकर हाई प्रेशर स्टोरेज की वजह से ब्लैडर और किडनीज में नुकसान होने की संभावना अधिक है, जिनमें यूरिनरी लीकेज और इन्फेक्शंस की संभावना अधिक है। ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोरेज फेज के दौरान हमें ब्लैडर के प्रेशर्स को मॉनिटर करना जरूरी है। उसका सबसे सरल तरीका है लेवल ऑफ इंजरी से कोरिलेट करना। जितने भी पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल यानी गर्दन के पीछे और डॉर्सल यानी छाती के पीछे चोट लगती है, ऐसे पेशेंट्स को हाई कॉर्ड इंजरी में कहा जाता है। इन पेशेंट्स में ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि ब्लैडर के अंदर हाई प्रेशर स्टोरेज होता है। तो अगर आप कोई टेस्ट नहीं भी करा रहे तो भी आप मान के चलें कि जिन पेशेंट्स में हाई कॉर्ड इंजरी है वो एट हाई रिस्क हैं, और जिन पेशेंट्स में लोअर कॉर्ड इंजरी यानी L2 से नीचे की इंजरी है उनमें लो रिस्क रहता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, क्लिनिकल कोरिलेट के लिए पेशेंट्स के लिए समझने के लिए आसान है कि जिन पेशेंट्स के पैरों में टाइटनेस, झटके या स्पास्टिसिटी आता है, ऐसे पेशेंट्स में अक्सर देखा गया कि उनके ब्लैडर के अंदर भी हाई प्रेशर स्टोरेज और स्पास्टिसिटी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी खास तौर पे अपना ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर यूरोडायनेमिक्स टेस्ट का कोई एडिक्वेट सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि कुछ केसेस में हम जो इनिशियल यूरोडायनेमिक करने के तरीके थे, यानी एक इन्फ्यूजन सेट के जरिए ब्लैडर को फिल करते हुए ब्लैडर के प्रेशर्स को अगर नजर रखें तो उससे हमें पता लग सकता है कि हाई प्रेशर स्टोरेज के केसेस कौन से हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस्ड और एक अवेयर डॉक्टर की जरूरत है। ज्यादातर केसेस में, जैसे शिवजीत जी ने कहा, अगर हम अल्ट्रासाउंड और KFT कर रहे हैं तो मोटे तौर पे हम अपने आप पर नजर रख सकते हैं। लेकिन शिवजीत जी, मेरी सिर्फ एक इसमें आपको जो एक गाइडेंस में हमें अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए, यही एक रिक्वेस्ट ऐड करूंगा कि यूरोडायनेमिक्स का पर्पस है उन कंडीशंस को प्रीएम्प्ट करना जो आगे चल के नुकसान कर सकती हैं। अल्ट्रासाउंड और KFT नुकसान होने के बाद हमें बताते हैं कि नुकसान हो गया है। यूरोडायनेमिक्स हमें बताती है कि नुकसान हो सकता है तो हम उसको रोक लें। बस इन्हीं दो चीजों के जो फर्क है साइंस में, अगर हम इन्हीं चीजों को कवर कर लें तो हम पेशेंट्स, खास तौर पे जो यंग पेशेंट्स हैं जिन्होंने 30 साल, 40 साल, 50 साल और जीना है, तो हम उनकी जिंदगी और उनकी सेहत में बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन और सलाह यही है कि हम अवेयरनेस करके यूरोडायनेमिक्स के यूज को, यूरोडायनेमिक्स की इंडिकेशंस को पेशेंट्स को समझाएं। सरल करने के लिए, आसान करने के लिए या सस्ता करने के लिए सब अस्पताल
मिलजुल के काम कर सकते हैं। और हम भी अपनी तरफ से अपने सेंटर में जहां हो सकता है हम इन लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक सर्टेन सेगमेंट जो पुअर पेशेंट्स के आते हैं उनमें फ्री यूरोडायनेमिक्स भी किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक नीड को हम इकोनॉमिक नीड से अगर हम हटाएंगे तो जितने भी 30 सालों में 40 सालों में हमने साइंटिफिक गेन्स किए हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। तो हमें यूरोडायनेमिक्स की नीड को सबके माइंड में एम्फेसाइज करना जरूरी है, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें आगे आने वाले रिस्क के बारे में समय से पहले बता सकता है। Thank you very much, Dr. Dinesh Suman. Thank you, Dr. Dinesh Suman. You have highlighted the importance of the dictum prevention is better than cure. So rather than trying to manage the urogenital system which has become compromised, you should prevent injury to the urogenital system by having a good bladder management program through a good evaluation technique, and here urodynamics play a very important role. The ultimate goal of bladder management in persons with spinal cord injury is having a low pressure bladder, and with investigations like urodynamics, you are able to ensure that you come to know about whether the individual needs any medications and the type of bladder management which his bladder profile dictates. Komal, do you have a quick comment on this? आई थिंक ये बहुत अच्छा बताया है डॉक्टर सुमन ने, दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू preempt any complications, but I don't know whether if you ask people who are on CIC whether they are able to do urodynamics in 1 year, 2 years. This is a very common asked question, and in India you don't, as of now, you don't have as many centers with affordable urodynamics. What should be the middle path is what I'm wanting to know. I mean, अगर कोई पेयर काउंसलिंग के टाइम पे बताता है कि हम उस विलेज में रहते हैं, वहां से यहाँ आए हैं, अभी एक फ्री हमें 10 दिन 15 दिन मिले हैं, लेकिन उसके बाद तो हमें वहीं जाना है, तो वहां हम हर साल तो नहीं आ पाएंगे, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? So Komal, I think Dr. Dinesh Suman had advocated the importance of preventing and assessing through urodynamics, but he also mentioned that if there are no recurrent infections and if there are no problems which can be seen, that one can assume that what you have been doing works well. But initially, every patient should have a urodynamic evaluation. Our friend Dr. Windale had done a workshop here also on low-cost innovative urodynamic techniques, and we have techniques which are available through which we can evaluate bladder pressure for the benefit of patients who do not have access or cannot afford a good urodynamic evaluation. In the interest of time, we will move forward. We know that one of the other challenges are disposable catheters and its affordability. In our study, we could find out that the majority of the patients are not able to afford disposable catheters because of the associated costs. Shivjit also pointed this out. And using disposable catheters which can be reused can help overcome the challenge of availability of disposable catheters. In fact, using reusable catheters can help us overcome this challenge. People try to use all kinds of catheters for intermittent catheterization, all kinds of reusable catheters. Many still use red rubber catheters, whereas there are enough studies which have shown that there can be deleterious effects on the urethral mucosa. तो जो एक मेन चैलेंज है कि लोग कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं डिस्पोजेबल कैथेटर्स, इसका अगर हम एक हल सोचें तो एक ये है कि हम रीयूजेबल कैथेटर्स यूज करें, बट एक अच्छा रीयूजेबल कैथेटर भी यूज करना चाहिए जो कि हानिकारक ना हो. तो इसीलिए डॉक्टर दिनेश सुमन जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा सबसे सूटेबल रीयूजेबल कैथेटर है जो एक पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूज कर सकता है. सर,
ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो पेशेंट्स क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यूज करते हैं उनमें कॉस्ट की वजह से डिस्पोजेबल कैथेटर इस्तेमाल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग आमतौर से इसी कैथेटर को रीयूज भी कर सकते हैं। ये कैथेटर या तो पीवीसी के बने होते हैं या सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन मटेरियल बायोडिग्रेडेबल और बायोस्टेबल एक एलिमेंट है जो कि लंबे समय तक बिना क्रैक हुए, बिना इन्फेक्शंस को इनवाइट किए, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पीवीसी कैथेटर को रीयूज किया जा सकता है लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। इस कैथेटर को रीयूज करने के लिए कोई भी साइंटिफिक गाइडलाइंस इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है। अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उनमें सिंगल यूज कैथेटर वर्सेस रीयूजेबल कैथेटर में लगने वाले किसी तरह की इंजरी या इन्फेक्शन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पाया गया। जो मेजर फैक्टर था वो था कन्वीनियंस और कंफर्ट का। जिन कंट्रीज में सरकार कैथेटर प्रोवाइड करती है और आपको कैथेटर फ्री मिलते हैं उन कंट्रीज में डिस्पोजेबल या हाइड्रोफिलिक कैथेटर इस्तेमाल करना उनके लिए सही है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जिन पेशेंट्स को सरकारी कोटा से ज्यादा कैथेटर इस्तेमाल करने होते हैं वहां भी वो अपनी जेब से खर्चा ना करके अक्सर रीयूज करते हैं। तो हमारे जो सभी मित्र कैथेटर रीयूज करते हैं वो कैथेटर रीयूज करते हुए ये ना समझें कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या गिल्टी ना महसूस करें। ये एक परफेक्टली सेफ और साइंटिफिकली एक्सेप्टेड तरीका है। अपनी जरूरत के, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप कैथेटर को रीयूज कर सकते हैं। सिलिकॉन और पीवीसी दोनों तरह के कैथेटर रीयूज हो सकते हैं। इन कैथेटर्स को आप तब तक रीयूज कर सकते हैं जब तक कि वो कैथेटर या तो आपको बहुत गंदे ना दिखें, कैथेटर फ्राइबल ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि बहुत लचीले या नरम हो गए हैं, यह बहुत स्टिफ या ब्रिटल हो गए हैं जिनमें कैथेटर अंदर टूटने का डर रहता है। कुछ लोग ऐसे कैथेटर्स को 1 से 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपनी कंडीशन के हिसाब से 3 से 5 दिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ 7 से 10 दिन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है हम कंपेयर कर सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, समय से सीआईसी करना, सफाई से सीआईसी करना और सावधानी से सीआईसी करना, अगर ये 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप कौन सा कैथेटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी महत्ता कम हो जाती है, आपके तरीके की महत्ता बढ़ जाती है। Thank you, Dr. Dinesh Sumanji. You have pointed out that reusable catheters have been found to be safe, and disposable catheters have not been shown to have a definite edge over reusable catheters, and that reusable catheters are not only used in emerging countries but also in developed countries for cost and other reasons. And it is more important to have a good technique of intermittent catheterization so that these intermittent catheterization, one does not have complications associated with it. Dr. Dinesh Suman, people have used various methods for processing reusable catheters, some boil, some autoclave, but these are all which people used to use, cleansing in Savlon, iodine. But this came also out of a study that we did where we talked to various consumers and patients and tried to find out what method they use for processing of reusable catheter. So would you also mention to our friends on to what are the recommended methods of processing of reusable catheter and also storing of reusable catheter? सर, ये कैथेटर को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके, उनमें भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि उनसे रिलेटेड कॉस्ट और उनकी अवेलेबिलिटी। दूर दराज की जगह पे रहने वाली जगहों पर बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा न होने की वजह से, अलग अलग तरीके के केमिकल्स और उनकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की सुविधा न होने की वजह से ऐसी चीजों के बारे में बहुत अधिक साइंटिफिक स्टडीज नहीं है। लेकिन WHO गाइडेंस के हिसाब से और जैक लैपिडर्स के ओरिजिनल स्टडीज के हिसाब से अगर हम मात्र साबुन और रनिंग वाटर से कैथेटर को अंदर और बाहर से अच्छे तरीके से साफ करते हैं, उस पर लगी जेली
और उस पर लगे पदार्थ अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, झड़क कर उसे साफ करते हैं और एक साफ कपड़े के बैग बनाकर उसे क्लीन जगह पे ड्राई रखते हैं। और खास तौर पे वो बैग अगर हैंगिंग अवस्था में रहे ताकि कैथेटर के अंदर रहने वाला पानी ग्रेविटी के साथ निकल सके, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मित्रों याद रखें, सिर्फ साबुन और पानी सबसे बेहतर तरीका है। कैथेटर को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी अच्छे से साफ करना है। कैथेटर को गीली जगह नहीं बल्कि सूखी जगह, सूखे कॉटन के कपड़े में, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके और वो पानी हवा के साथ उड़ सके, ये बहुत जरूरी है। सेवलॉन का इस्तेमाल करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सेवलॉन के अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ होने का डर रहता है और सेवलॉन जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो वो कई लोगों में रिएक्शन कर सकता है। ऑटोक्लेव करना इसीलिए ज्यादातर उचित नहीं है क्योंकि ऑटोक्लेव करने से कैथेटर लचीला और बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही ढीला हो जाता है, जिससे कैथेटर यूरेथ्रा में मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बॉयल करने से भी कैथेटर की मटेरियल क्वालिटी पे असर पड़ता है। कैथेटर की दीवारों में क्रैक्स डेवलप होते हैं और इस तरह के क्रैक से इंफेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो बहुत एडवांस तरीकों के बजाय सिंपल सोप एंड रनिंग वाटर इज द बेस्ट व्हिच कैन बी प्रैक्टिस्ड इवन इन द डिस्टेंट एरियाज बाय ऑलमोस्ट एवरी पर्सन। Thank you, Dr. Dinesh Suman. Shivjit ji, do you have anything to add with regard to the consumer perspective on using of reusable catheters as well as methods to process it and to store it? मैं एक तरह से वैसे तो पूरी तरह से डॉक्टर दिनेश सुमन साहब से सहमत हूं, जो उन्होंने बताया बिल्कुल यही तरीका है। क्योंकि अब मुझे चोट लगे करीब 42 साल हो गए और मैं बता सकता हूं कि कैसे धीरे धीरे ये इवॉल्वमेंट हुआ है। शुरू में किस तरह से कॉन्डोम ड्रेनेज ही इस्तेमाल किया जाता था, स्पाइनल सेंटर्स में भी कॉन्डोम के ऊपर वो होता था और धीरे धीरे चीजों में आगे आए हैं हम लोग। बिल्कुल ये बात है, कैथेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। जहां तक स्टोर करने की बात है, मैंने थोड़ा सा एक तरीका इस तरह का भी निकाला कि आप, हालांकि वो घूम फिर के बात वहीं आती है, और मेरा ये मानना है कि दिन में मान लीजिए आप 4 बार CIC करते हैं या 5 बार करते हैं, तो उससे दुगने नंबर के कैथेटर्स रखें। यानी जैसे 10 कैथेटर्स आप रखते हैं और आप एक एक कैथेटर करके दिन में 5 बार इस्तेमाल करें और उन 5 कैथेटर्स को धो के, जो कॉटन बैग की बात हो रही है, वो जैसे उसका कैथेटर का कवर होता है लंबाई वाली बैग्स बनाएं जिसमें कैथेटर बिल्कुल सीधा लंबा रहे, और जो डॉक्टर दिनेश सुमन ने कहा कि जिससे कि वो उसमें से पानी भी झड़ जाए और वो लंबा सीधा रहे, उसमें वो मुड़े तुड़े भी नहीं ज्यादा और ये हो। और इस तरह से आप दूसरे दिन उन 5 को इस्तेमाल करें जो आपने पहले दिन इस्तेमाल कर लिए, अगले दिन दूसरे 5 को करें, और जो आपने एक दिन जिनको रेस्ट दे दिया उनको इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा कि आप कम से कम 1-2 महीने तक भी उन बात घूम फिर के वहीं आती कि आप एक कैथेटर को 5 दिन, 4 दिन या 10 दिन इस्तेमाल करते हैं या 10 कैथेटर्स को अलग अलग दिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उस तरफ मुझे कुछ बेहतर नतीजे मिले और मैं वो शेयर करना चाहता था। बट इफ डॉक्टर दिनेश सुमन हैज समथिंग टू से, आई वुड डेफिनेटली know the scientific reason. So, friends, both our experts have mentioned that reusable catheters are safe to be used, and there are various methods to use it, but generally the recommended methods are to use it with clean it with soap and running water. Running water is important, and cleaning it with soap is also very important, and storing it within a clean cotton cloth bag which is regularly washed. So you may do it various ways. The recommended technique, as also Mr. Shavjit said, was to have a long cotton cloth bag in which you could put one catheter, the same like in which you get the catheter, except that it would be a clean cotton cloth bag which is regularly washed. Komalji, do you have anything to add? No, it's just, yeah. My lived experience is exactly this. The only difference that the hospital where I was told Foley's catheter was good enough to be doing a CIC, which has worked wonders for me so far.
I have had no problems using a Foley's catheter, and only one Foley's catheter lasting for about 2 to 3 weeks during summers, and in winters it can go even up to a month. जब वो थोड़ा सा सपल सा हो जाता है आगे से और अंदर आराम से नहीं जा पाता है तो उसको चेंज करना चाहिए. So Foley's catheter being used as for CIC without inflating the balloon. सिर्फ ये है कि उसके जो V शेप आगे है वो आपके कॉटन का क्लॉथ बैग जो है वो वहां पर एक धागा बांधा है, उस धागे को के पास अटक जाता है, वो नीचे नहीं गिरता है और बाथरूम में किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए लेकिन एरेशन मिले. तो मैंने ये देखा है. अनदर थिंग कि जो Foley's कैथेटर है मेरा, मैं उसको रनिंग वाटर में एक तरफ और फिर दूसरी तरफ ऐसे ऐसे करके 3-4 बार अगर मैं पानी को अंदर से इस तरफ से इधर और इधर इस तरफ से इधर ले जाती हूँ और आगे की जगह जहां पर आपने जेली लगाई होती है उसको मसल के वॉश करके बिफोर एंड आफ्टर. तो ये मेरे लिए आज तक सही रहा है. I think Dr. Dinesh Suman would probably would be okay with this. बिल्कुल मैम. जैसे आपने अपने इस मेथड को रिफाइन किया जैसे आपको सिखाया गया था और उसको आपने बेसिक प्रिंसिपल समझते हुए अपने हिसाब से बनाया, इसी तरह से हम अपने सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस और हाइजीन को समझकर अगर आप अपने कैथेटर की ध्यान के लिए जागरूक रहते हैं, करने का तरीका कोई भी हो सकता है, कैथेटर किसी भी प्रकार का हो सकता है, इन सब का सफाई से ध्यान रखना और इनको सफाई से संभाल के रखना और इनको केयरफुली यूज करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे आपने बताया कैथेटर के अंदर से हमारे बहुत से मित्र सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिक्विड सोप कैथेटर के अंदर से फ्लश करके उसे अंदर से रनिंग वाटर में फिर वॉश करते हैं ताकि कैथेटर अंदर से साफ हो जाए. तो हर तरह का कैथेटर पेशेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए. कैथेटर्स के इस्तेमाल के और सफाई के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, तभी उन्हें पता चल पाएगा कि इन सब तरीकों में से उनकी कंडीशन के हिसाब से कौन सा तरीका उनको सबसे ज्यादा माफिक बैठता है और जो तरीका सही लगे उसी को कंटिन्यू रखें और रेगुलर फॉलोअप में अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करके उसकी सेफ्टी असेसमेंट कराते रहें. सर एक पॉइंट शायद हमारा छूटा या फिर बाद में आने वाला था, मुझे पता नहीं, लेकिन क्लीनिंग ऑफ द एरिया बिफोर इंसर्टिंग एंड आफ्टर फिनिशिंग द CIC, that also needs to be taken care of. What I was told was कि गॉज पीसेस बनाओ और एक डिब्बी में डाल के उसको प्रेशर कुकर में 1 सीटी 2 सीटी लगवा लो और उसमें से आराम से आप एक निकाले यूज करें और फिर दूसरा निकाले यूज करें. नाउ अनदर थिंग इज हाउ, वो तो कर लिया आपने एक बार, तो उसमें 10-15 दिन आपके एक डिब्बी स्टील के डिब्बी में से निकल गए, लेकिन डालने क्लीनिंग से पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह एक 100 ml पानी एक मग में लिया, उसमें मैं आधा ढक्कन बीटाडीन का डाल देती हूँ लोशन का, और करने से पहले ये 2 जो गॉज पीसेस हैं वो उस वाटर में होते हैं, तो उसमें से एक निकाला, क्लीन करा फ्रॉम नीचे से लेकर ऊपर, और फिर उसको थाई पे रख दिया, और उसके बाद में करने के बाद भी आपने दूसरा वाला निकाला और कर दिया. सो क्लीनिंग ऑफ द एरिया स्पेशली इन फीमेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किस डायरेक्शन में होता है और कैसे किया जाता है वो बहुत जरूरी है. आफ्टर भी बहुत जरूरी है क्योंकि जेली वहां रुक जाएगी, रह जाएगी, तो पहले भी और बाद में भी. ये दोनों चीजें मुझे बतानी थी, शायद आप बाद में बात करते, मैंने पहले बोल दी. बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने. क्लीनिंग इवन बाय सोप एंड वाटर, अगर आप नहाते समय साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करते हैं, अगर बहुत से लोग बीटाडीन से एलर्जिक हैं तो सिंपल वाटर से भी एरिया को क्लीन रखते हैं. हाइजीन एंड क्लीनलीनेस को आप किस तरीके से अचीव करते हैं
उसके मुकाबले आप कितनी एक्सटेंट तक अचीव करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे सभी मित्र हाथ की सफाई, प्राइवेट पार्ट की सफाई, कैथेटर का इधर उधर न टच करना और स्लो टाइमली जेंटल कैथेटराइजेशन करना, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि CIC उनके लिए बहुत अच्छा एक वरदान सिद्ध होगा। थैंक यू डॉक्टर दिनेश सुमन, आपने बताया कि इम्पोर्टेंस टेक्निक की, अगर हम अच्छा टेक्निक फॉलो करते हैं जिसमें सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, कैसे साफ रखना वो भी जरूरी है, एक अच्छी टेक्निक फॉलो करें तो आप एक CIC को अपना एक हथियार बना सकते हैं ताकि आप सेफ रहें। तो genitourinary or renal complications were the leading cause of death before the introduction of intermittent catheterization, as we talked about. The rate of urinary tract complications is 50 to 80% in the first year post injury. So दोस्तों, जो किडनी और ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशंस सबसे कॉमन कारण थी मोर्टेलिटी की, मौत की, जिससे पहले की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैनेजमेंट रेवोल्यूशनाइज हुआ, और चोट लगने के बाद पहले वर्ष में भी 50 से 80% लोगों में ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. So this rate continues to be very high. In fact, urinary complications are the most common complication. There are various causes which are there, like inadequate evaluation and concomitant medication after evaluation, as Dr. Dinesh Suman mentioned about, improper method of bladder management, increased use of reusable catheters, and improper use of processing and storing reusable catheters. So, the urinary tract infections can cause various symptoms: increased spasticity, worsening incontinence, fever, malaise, autonomic dysreflexia. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कई लक्षण होते हैं. स्पासिटी बढ़ सकती है, पेशाब लीक करना शुरू हो सकता है, बुखार हो सकता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो सकता है. तो डॉक्टर दिनेश सुमन, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ रिकरेंट जेनिटो-यूरिनरी इन्फेक्शंस? सर, may I just go back a bit, sir? Right. एक पॉइंट मेरा इससे पहले वाला, इनकॉन्टिनेंस तब भी हो सकता है, हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है. जब हम CIC करते हैं तो जो शिवजीत ने कहा कि फिर हम IDC पर आ जाते हैं, एक बार गीला हो गया, 2 बार गीला हो गया लोगों के सामने, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया. तो डायपर्स जो हैं वो हमारे देश में बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और मैंने ये बहुत आसान एक तरीका निकाला है कि जो बेबी डायपर्स होते हैं, बेबी पैंटी लाइनर्स होते हैं, उसको लगाकर और उसके ऊपर एक छोटा नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन डालकर मैंने ऐसे ही बहुत साल गुजारे हैं विदाउट यूजिंग अ फुल डायपर. तो इनकॉन्टिनेंस का चाहे आप जितना भी ध्यान रख लें CIC टेक्निक्स और टाइमिंग्स का, इनकॉन्टिनेंस आपके दिमाग में एक फियर रहता है, तो वो फियर जो है उसको निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. सो प्लीज कैरी ऑन विद दिस नाउ. सॉरी. Thanks, Momal. That is the lived experience. Though the aim and the goal of bladder management is to have a continent person, but that fear that you may have incontinence, you have talked about a very innovative technique on how our friends can manage that. So, Dr. Dinesh Suman, adding to that, what are the strategies to overcome the challenge of recurrent genitourinary infections? So, Dr. Dinesh Suman, अब हमें बताएंगे कि हम कैसे इस चुनौती से हम कैसे अवसर निकालें इस चुनौती से को जीतने के लिए. सर, जेनिटो-यूरिनरी इन्फेक्शंस, जितने भी यूरिनरी इन्फेक्शंस हम महसूस करते हैं, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि उनका मुख्य कारण क्या है. जैक लैपिडास के क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के प्रोसेस आने के बाद ये समझ में आया कि ब्लैडर इन्फेक्शंस का मेन कारण है हाई प्रेशर स्टोरेज. हाई प्रेशर स्टोरेज हमारी ब्लैडर की दीवारों को फुलाती है. उसके प्रेशर की वजह से ब्लैडर की म्यूकोजा और ब्लड वॉल की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है.
और उस ब्लड सप्लाई कम होने से इस्कीमिया डेवलप होता है, जो कि ब्लैडर की इनेट इम्यूनिटी को कम करता है और बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। दूसरा, जिस समय ये इनिशियल इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन और स्टेराइल कैथेटराइजेशन 60s और 70s में शुरू हुई थी, उस समय पे ब्लैडर रिलैक्सेंट मेडिसिन नहीं थी। ओवर एक्टिव ब्लैडर की मैनेजमेंट के लिए जितने भी तरीके हम इस्तेमाल करते थे वो सफिशिएंट नहीं थे। आज बहुत अच्छी एंटीकोलिनर्जिक और अलग तरह की दवाइयां आने से हमारे पास बहुत अच्छे तरीके मौजूद हैं कि हम ब्लैडर के हाई प्रेशर स्टोरेज को लो प्रेशर स्टोरेज बना सकते हैं। टाइमली सीआईसी करके ब्लैडर को टाइमली खाली कर सकते हैं। अगर हम ये दो चीजें का ध्यान रखें तो उसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। नंबर 3, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यूरिनरी इन्फेक्शन वास्तव में होता क्या है। हमने देखा हमारे बहुत से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र हर हफ्ते यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट कराते हैं और उसमें निकलने वाले पसल्स को देखकर घबराकर फोन करते हैं। यूरिन कल्चर में इकोलाई, प्रोटियस, एंट्रोकॉकस निकलने पर घबराकर हमें फोन करते हैं। हम सब अपने दोस्तों को निवेदन करना चाहते हैं कि अपने यूरिन टेस्ट के परिणाम को यूरिनरी इन्फेक्शन न समझें। यूरिनरी इन्फेक्शन यानी वो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन जो कि आपके शरीर को कोई तकलीफ दे रहा है या आगे चल के किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह के इन्फेक्शन को हमने मैनेज करना है। अदरवाइज न्यूरोजेनिक ब्लैडर अपने आप में जो एक कंडीशन है वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है। सीआईसी करने से बैक्टीरिया अक्सर इंट्रोड्यूस होते हैं। यूरिन टेस्ट में आमतौर से हमें पसल्स और बैक्टीरिया नजर आते हैं, लेकिन ये सब यूरिनरी इन्फेक्शंस नहीं है। इस तरह की कंडीशंस को एसिम्प्टोमेटिक पायूरिया या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया कहते हैं। तो मेरी सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए जब भी अभी आपको कोई सिम्टम्स हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर, अपने यूरोलॉजिस्ट से गाइडेंस लें। आपको कब यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करना है उनकी गाइडेंस में करें। अननेसेसरीली अपना समय और पैसा न बर्बाद करें और खाली रिपोर्ट देखकर अपने आप कोई एंटीबायोटिक ना लें। एंटीबायोटिक्स अधिक लेने से आपके शरीर में और समाज में भी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है, जिससे आगे चल के हमें सही मात्रा में सही एंटीबायोटिक्स की कमी पड़ने की संभावना है, जो कि सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शंस को बचाने के लिए जनरल सफाई के और जनरल टेक्निक के अलावा ब्लैडर की दवाइयां समय से लेना, ब्लैडर को लो प्रेशर स्टोरेज रखना, अपने यूरोलॉजिस्ट की गाइडेंस में समय से टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Dinesh Suman. You pointed out also that not every urine sample which shows bacteria, it can't be labeled as urinary tract infection. It has to be coupled with symptoms of systemic infection, whichever they are, including fever, malaise, autonomic dysreflexia, incontinence, or increased spasticity. And unless this is there, you should not start treating them. You also talked about the various causes, and that is one of the most important causes being not being able to maintain a low pressure bladder after proper evaluation, and not needing concomitant medications where required, using improper methods and improper means of processing and storing reusable catheters, or not using a proper technique. So one needs to counter that to be able to prevent genitourinary infections. So शिवजीत जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक दो चीजें और इसमें कहना चाहूंगा। जो एक तो बात आई कि हाइजीन बहुत जरूरी है, वो भी इस उसमें ऐड करा जाए। दूसरा यह है कि जो पानी की मात्रा, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच वी टेक, इवन दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज हमको डाइजेशन की तरफ भी ध्यान रखना है और सीआईसी में पर्याप्त मात्रा में यूरिन निकले उतना, क्योंकि बहुत कम अगर पानी पीते हैं इस डर से, तो उससे भी कई बार जो है वो यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड होने लगता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। दूसरा ये है कि जो सीआईसी का करने का तरीका, जैसे जिस पे बार बार दिनेश सुमन साहब जोर दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है लोगों को समझाना और सिम्टम्स पे बहुत ध्यान रखना।
एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जो एंटीबायोटिक्स को लेके है, वो बहुत जो हमारे साथी हैं वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में रहने के दौरान या जब कभी उनका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया तो वो 2-3 एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर लेते हैं कि ये नॉर्फ्लॉक्स है, सिप्रोफ्लॉक्स है, और जब कभी वो जैसा उन्होंने अपना यूरिन टेस्ट कराया उसमें कुछ उनको नजर आया और वो अपने आप जो है वो नॉर्फ्लॉक्स या सिप्रोफ्लॉक्स शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि अपना वो उनको लगा कि इन्फेक्शन है, स्पैज्म बढ़ गया है, तो वो अपने आप वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, और शुरू भी कर देते हैं तो वो उसको 2 दिन जब उनको आराम आ गया बंद कर देते हैं। तो ये जो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे ये इन्फेक्शन, क्योंकि बाद में ज्यादातर वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और वो ले दे के एक आध इतना महंगा एंटीबायोटिक बचता, वो भी नहीं बचता कई बार जो है, जब आप इस कदर से मिसमैनेज करते। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पेशेंट्स को या जो पर्सन से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उनको समझाया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद शिवजीत जी. You talked about also various important things, including the fluid balancing and also the importance of preventing misuse of antibiotics. Komal ji, do you have anything to add from your lived experience? I think everything has been covered, but as for me, जब मेरा incontinence फीवर तो नहीं होता है, लेकिन incontinence मीनिंग के अगर 4 घंटे 5 घंटे रहना है तो वो उससे पहले और निकल जाता है 50 ml 100 ml निकल जाए, बिकॉज आई मेजर एवरी टाइम. ये मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना. तो अगर वो मेजरमेंट मेरी 100 ml ही थी और लीक हो गया, दैट गिव्स मी द सिग्नल कि मेरे पास मेरे में कोई इन्फेक्शन है. सो इफ आई कैच दैट इन टाइम, I do it, I hydrate myself a little more and try to clean up the system. एक चीज मैंने एयर मार्शल चहल ने मुझे बताई थी कि जब भी हम कोई प्रिस्क्रिप्शन के साथ में एंटीबायोटिक लेते हैं, डॉक्टर्स असेस करते हैं कि आपको कितना मात्रा में लेना है, और मतलब कि ब्लड में टाइटर जो है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए. वो कहेंगे 5 दिन लेना है TDS, 7 दिन लेना है, 10 दिन लेना है, व्हाटएवर. अपने आप अगर दूसरे तीसरे दिन आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो आप छोड़ मत दीजिए. वो पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. और यूजुअली उनको आपके सिम्टम से पता चल जाता है कि आपकी इन्फेक्शन किस लेवल की है. उस लेवल के ऊपर के टाइटर का वो एंटीबायोटिक देंगे आपको, और उसको आपको मेंटेन करना है फॉर दैट मेनी नंबर ऑफ डेज एज गिवन बाय द डॉक्टर. डॉक्टर सुमन, इज दैट ओके विद यू? यस मैम, परफेक्टली. मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था, मैं चैट्स में भी देख रहा था कि कई लोग क्या करते हैं कि जो SPC भी यूज करते हैं या आपके इंडवेलिंग भी करते हैं, वो लोग उसको पेस्ट करके उसको वो एक जगह पे वो नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, जो है बाइंड नहीं करते हैं, और वो मूवमेंट करता रहता है. क्योंकि अभी भी किसी ने वो सवाल किया था कि ब्लीडिंग मुझे उसके बावजूद होती है. वो तभी होगा जब कैथेटर आगे पीछे आपके पेशाब के रास्ते में या SPC में आगे पीछे ज्यादा आगे पीछे होगा. तो वो भी एक मुद्दा है जो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है. सर मुझे एक चीज और ऐड करनी है सर. 1 मिनट. थैंक यू. आई विल ओनली मुझे मैंने मास्टर चहल का नाम इसलिए याद आया मुझे कि उन्होंने ये कहा कि जिस दौरान जो 5 दिन आपको कहा गया है कि आपको एंटीबायोटिक खाना है, उस दौरान आप पानी कम पीजिए, ताकि सारा का सारा ये जो एंटीबायोटिक है ये ब्लैडर में जाए. उसके 6ठे दिन 7वें दिन आप खूब सारा पानी पीजिए. एक तो ये बात बताई उन्होंने, और वो मैंने अपने पल्ले में बांध ली, और वो मेरे को बहुत सूट करती है. दूसरी बात उन्होंने कहा, एक लेमन, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई छोटी चीज नहीं, एक नींबू सस्ती सी चीज है, एक नींबू रोज का थोड़े से पानी में निचोड़ कर पी लो. उससे
मेरे हिसाब से मुझे ये दोनों चीजें, डॉक्टर सुमन विल बी एबल टू टेल अस बेटर, कि हम जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एंटीबायोटिक की, तो उसके साथ में कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि खूब पानी पियो, और दूसरा ये जो मैंने समझा और करा और मुझे ये सही लगा। तो सर आपका क्या कमेंट है इस पे? with regard to certain antibiotics, certain antiseptics जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, उनके बैक्टीरियल एक्शन के लिए जरूरी होता है कि वो ब्लैडर में कुछ समय तक रहें। इसीलिए पुराने समय में, जिस समय CIC बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था, तो पेशेंट्स को कम पानी पीने के लिए और यूरिन होल्ड करने के लिए कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जब अब CIC की सुविधा ज्यादा हो गई है, तो आप जितना पानी नॉर्मल ले रहे हैं आप ले सकते हैं। पानी की मात्रा 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन एक साधारण व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा करने से जब आप CIC करते हैं तो आप 300 से 400 ml तक अपने ब्लैडर में 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए होल्ड करते हैं। ये समय पर्याप्त है उस एंटीबायोटिक के आपके ब्लैडर में एक्ट करने के लिए। दूसरा, आपने नींबू का बताया, ये बहुत अच्छा तरीका है। यूरिनरी एसिडिफिकेशन इज ए वेरी सिंपल मेथड ऑफ इरेडिकेटिंग सम हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ऐसे केसेस में जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, जो एल्कलाइन पीएच में पनपते हैं, यूरिन को इस तरह के पदार्थ जैसे नींबू और आंवला, इस तरह की चीजें इसमें हेल्प करती हैं। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है, हल्दी भी बहुत एक हेल्पफुल चीज होती है जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तानी घरों में हर खाने में इतनी हल्दी होती है कि हमें एक्स्ट्रा हल्दी लेने की जरूरत नहीं है। हमारी माँ बहनें हमें इस चीज से पहले ही बचा के रखती हैं। सर, Thank you, Dr. Dinesh Suman. We talked about various, means we mainly talked about the urinary tract infections, but there can be various other complications like there can be reflux and infection, pressure on the kidneys leading to hydronephrosis and pyonephrosis. There can be orchitis, epididymitis, fistulae, false passage. So there can be various other complications. तो मित्रगण, कई तरह की complications हो सकती हैं, ना खाली urinary tract infection, but अगर ठीक से ना मैनेज किया जाए तो किडनीज भी फेल कर सकती हैं। और ये काफी, मतलब पहले जैसे हमने बात किया था, ये सबसे आम कारण था क्यों लोग अपनी एक साधारण आयु नहीं जी पाते थे। So I believe the strategies to overcome these challenges are the same as we have discussed: good technique, a safe technique, proper evaluation. After a proper evaluation, following whatever the urologist or the doctor has advised you, whether the medications have been advised, they need to be taken properly. And also try to nip any infection in the bud, and a lifelong follow-up. So these would be strategies to overcome the challenge of other genitourinary complications. Dr. Dinesh Suman, are there any other strategies to overcome this challenge of having genitourinary complications? Sir, you have summarized it very well, sir. मैं अपने दोस्तों की आसान समझ के लिए एक सरल तरीके से कहूंगा कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हमने अभी डिस्कस की हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेग्लेक्ट थी। ये कॉम्प्लिकेशंस उस जमाने की थी जिस समय पे टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आज उपलब्ध है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, पहला प्रिंसिपल, स्टे इन टच विद योर यूरोलॉजिस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। अपने यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, वो समय से आपकी जांच करके आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जांच है और मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के हिसाब से जो ब्लैडर को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं, वो समय से लें। ये करने से आप अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को, जो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनसे बहुत अधिक हद तक बहुत अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Dinesh Suman. In the interest of time, we will move forward, though there are various opportunities with a good bladder management system.
प्रोग्राम। तो अवसर है कि हम इन चुनौतियों को ओवरकम करें एक अच्छे ब्लैडर मैनेजमेंट प्रोग्राम से। इसमें हर एक का एक अच्छा रोल है, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट है, चाहे वो आपकी रिहैब की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, चाहे पेशेंट खुद है ना। और ये देखा गया कि अगर बेस्ट ट्रीटमेंट एट द चीपेस्ट प्राइस मिले लोगों को तो उससे बेस्ट आउटकम मिलते हैं। तो कई स्टडीज मोर्टेलिटी की उन्होंने दिखाया कि यूरिनरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस और रीनल फेलियर अब सबसे आम कारण नहीं है डेथ का स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड में। पहले ये होता था, अब अच्छे ब्लैडर मैनेजमेंट प्रोग्राम से इसको कंट्रोल कर लिया गया है। हमारी सोसाइटी में स्ट्रेंथ्स भी हैं, एक अच्छा फैमिली सपोर्ट, एक मतलब इनोवेटिवनेस है ना, नए टेक्निक निकालना, नवीन टेक्निक्स निकालना, रिलेटिवली चीप और अबंडेंट मैन पावर जो केयर गिवर्स की तरह काम कर सकते हैं, स्पेशली हमारे टेट्राप्लीजिक मित्रगणों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये स्ट्रेंथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। So friends, we talked about various strengths in our society which help us overcome this challenge posed by various complications of a neurogenic bladder. And amongst them are a very strong family support, a strong community support. We also have what we call as jugaad, a tendency towards innovativeness, to come out with newer techniques, and the availability of relatively cheap and abundant manpower, which help in providing caregivers to our tetraplegic colleagues especially. So in our study, when we looked into factors hindering hospital care, one of the most important factor was awareness about spinal cord injury management not being there, right? And inadequate education. And when we looked at the neglected cases, again, lack of awareness was the cause in 52.5% of these patients. मित्रगण, जब हमने देखा कि क्या सबसे आम कारण है इस चैलेंज का और नेग्लेक्ट का, तो हमने देखा कि जो जागरूकता की कमी है वो ही एक सबसे आम कारण है इसका। So it is very important to pass on information to patients, consumers, caregivers to create awareness. And this is what we have been doing today in the webinar. And this is what the Spine Wellness and Care Foundation aims for. This is a charitable non-governmental organization established for improving the wellness of people with spinal ailments in India. We reach and serve persons affected with spine-related ailments medically and socially to help them lead better lives. And our main objective is to provide medical, rehabilitation, vocational, recreational, and social support for persons affected with spine and spinal ailments. So friends, दोस्तों, ये अवेयरनेस क्रिएट करना ही हमारी स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है। और हम स्पाइन से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए ही ये फाउंडेशन बनी है। It is in your hands to create a better world for all who live in it. Come join hands to improve spine wellness and care and to alleviate the burden of spine disease. तो मित्रगण, आइए हम सब मिलकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे और अवेयरनेस क्रिएट करें, स्पाइन एलिमेंट्स के बारे अवेयरनेस क्रिएट करें और इस चुनौती से सफलतापूर्वक बाहर निकलें। आप सबका धन्यवाद इस वेबिनार में होने के लिए। पर अब हम उन मित्रगणों के लिए जो काफी देर से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और जिनमें अभी पेशेंस है, इस लंबे वेबिनार के बाद हम उन सबके प्रश्न भी लेंगे जल्दी, और जिन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे उनका जवाब जरूर हम बाद में पहुंचाएंगे।
So thank you for being with us for this webinar per se. Thank you. Quickly, we will come to the questions, and I will ask our experts to answer those questions, though many of them would have been addressed. Dr. Dinesh Suman, the question is, does SPC have any side effects? कोई भी प्रोसीजर अपने फायदे के साथ साथ नुकसान भी जरूर लेके आता है, और उसके साइड इफेक्ट जो है आमतौर से उसकी इम्प्रॉपर केयर के साथ जुड़े होते हैं। तो सुप्रापेपिक कैथेटर चूंकि नाभि के नीचे डायरेक्टली ब्लैडर में लगाया जाता है, पेट के रास्ते साफ रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर कैथेटर को समय से चेंज ना किया जाए, सही तरीके से चेंज ना किया जाए, और जैसे शिवजीत जी ने बताया, अक्सर लोग कैथेटर को एब्डोमेन से फिक्स करके, कैथेटर स्ट्रैपर से या टेप से फिक्स करके नहीं रखते, कैथेटर ढीला ढाला डैंगलिंग अवस्था में रहता है, जो कि खिंचाव पैदा करके अंदर के ब्लैडर पर दबाव डाल सकता है, तो उसकी वजह से उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। कैथेटर लंबे समय तक रहने से इन्फेक्शंस, और बहुत लंबे समय तक रहने से स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। शुरू में हमने देखा था कि हमारे बहुत से पेशेंट्स आते थे जो कैथेटर 3-3, 6-6 महीने तक चेंज नहीं कराते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, जो पेशेंट दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, वहां पे एसपीसी चेंज करने के लिए डॉक्टर और नर्सेस ट्रेन नहीं होते, और अक्सर एसपीसी कैथेटर चेंज नहीं हो पाता। तो इसीलिए जब भी आप कभी एसपीसी को इस्तेमाल करने के बारे में सोचें, तो जरूर ध्यान रखें कि पेशेंट की लोकेशन क्या है, रेजिडेंस क्या है। बहुत छोटी जगहों पर रहने वाले पेशेंट्स के लिए क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है। पॉलीयूरेथ्रल कैथेटर ज्यादातर नर्सेज और डॉक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन एसपीसी देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग 6-6 महीने तक कैथेटर चेंज नहीं कराते, उनके कैथेटर फ्राइबल होकर इतने कमजोर हो जाते हैं कि टूट के अंदर ही रह जाते हैं, और उस पर स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने से, अगर आप ठीक से समय से कैथेटर चेंज कराते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो एसपीसी बहुत ही सेफ ऑप्शन। One liner, Dr. Dinesh Suman, about Mitrofinov option. मिट्रोफिनॉफ ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन है जो किसी वजह से नीचे यूरिन के रास्ते से सीआईसी नहीं कर सकते हैं, या नहीं जिनमें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम उनके एब्डोमेन से एक इंटेस्टिनल पार्ट को, चाहे अपेंडिक्स इस्तेमाल करें, चाहे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, या किसी केसेस में बाकी अंगों का इस्तेमाल करके एक पैसेज क्रिएट करते हैं, और उस चैनल के थ्रू कैथेटर डाल के आप पेट या नाभि के रास्ते से भी अपने सीआईसी की प्रोसेस को कर सकते हैं। ऐसा करने से उन पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि यहाँ हाथ पहुंचना आसान है, इन्फेक्शंस कम होते हैं क्योंकि यहाँ ये एरिया साफ रहता है, और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है रेदर देन रीचिंग द पेरिनियम। तो मिट्रोफिनॉफ एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जो पेशेंट्स अपने यूरिनरी पैसेज से प्रॉपर तरीके से सही टाइम पे सीआईसी कर सकते हैं, उनके लिए ये सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ साथ इसकी इंडिकेशंस कम होती गई हैं, और ज्यादातर लोग जो सीआईसी करते हैं वो उस पर स्टेबल रह सकते हैं। Dinesh, Dr. Dinesh, Vijay Gardeji wants to know how can he overcome the challenge of difficulties in bladder management during tours when he's going around. सर, इसके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि he should get in touch with me at a personal level. We should go through his clinical details, and then based upon his personalized need, we will suggest him a tailor-made solution. हर पेशेंट के लिए उसके ब्लैडर के मैनेजमेंट ऐसे है जैसे आपके लिए पैंट और शर्ट बनवाना। तो आपके नाप के हिसाब से कौन से साइज की पैंट और कौन से साइज की शर्ट आप पहनेंगे वो हम तैयार करेंगे। तो आप प्लीज गेट इन टच विद मी, ऑल क्लिनिकल डिटेल्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। And what should be the ideal volume we should aim at during CIC? That is what is another question. सर, सीआईसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए वॉल्यूम की, ये यूरोडायनामिक्स क्राइटेरिया से पता लगता है कि सेफ स्टोरेज वॉल्यूम क्या है। बट साधारणतः आम लोगों में 200 से 400 ml मात्रा एक मीडियम रेंज है। 200 ml से कम होने पर आपके शरीर में पानी की कमी के लक्षण है, तो आप पानी पीने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 400, 450, 450 ml से अधिक होने पर आपको एहसास होना चाहिए कि आपके शरीर में पानी
अधिक है तो आप अपने लिक्विड इंटेक को थोड़ा टेलर या कंट्रोल कर सकते हैं। तो 200 to 400 ml आपका टारगेट होना चाहिए हर CIC में हर रफली 4 घंटे पे अचीव करने के लिए। जो हमारे मित्र गणों का इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं हम जरूर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे बाद में इस वेबिनार के। यहाँ कॉमन क्वेश्चंस को हम जरूर एड्रेस कर रहे हैं। दिनेश जी, अगर सुप्राप्यूबिक कैस्टर है किसी में, फिर भी उसमें अगर ब्लड क्लॉट्स आते हैं और कई बार सफेद क्लॉट्स भी आते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे यूरिन में जितने भी हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कैथेटर के साथ रिलेटेड जो सिक्रीशंस होती हैं जो इरिटेशन से बनती हैं, और जो हमारे कैथेटर के साथ होने वाले लो ग्रेड इन्फेक्शंस हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी चीजें यूरिन के साथ मिलकर एक सेपरेट डिस्चार्ज के फॉर्म में कैथेटर में अक्सर रहती हैं। तो जब कभी भी हमारे पेशेंट जो इनवेलिंग कैथेटर पे हैं ऐसे डिस्चार्ज नोट करें तो उनके लिए सबसे पहली हिदायत है कि अपने पानी पीने की मात्रा बढ़ा दें। CIC के साथ पानी की मात्रा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इंडवेलिंग कैथेटर के साथ आपको पानी की मात्रा इनफैक्ट बढ़ा के रखनी है, क्योंकि आपका यूरिनरी सिस्टम जितना फ्लश्ड रहेगा उतना ही आपके शरीर में इस तरह के पदार्थ इकट्ठा होने के और इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस कम होंगे। तो जितने पेशेंट्स पेरियूरेथ्रल कैथेटर या सुप्राप्यूबिक कैथेटर पे होते हैं उनके लिए गाइडेंस ऑपोजिट है। आपको कम से कम 3 लीटर यूरिन जरूर आना चाहिए। आप पानी अधिक से अधिक पी सकते हैं। सिर्फ CIC करने वाले पेशेंट्स के लिए पानी की मात्रा का कंट्रोल जरूरी है। या कविता जी पूछना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का उनका स्टोन है तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं कविता जी, एक साधारण इंसान की तरह आप में भी गॉल स्टोन्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये इस वेबिनार से अनरिलेटेड है, बट आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर हमें लिखें और हम उसका आपको इस सवाल का जरूर जवाब देंगे। अभी आते हैं, 2 मिनट दीजिए कविता, 2 मिनट दीजिए। एक सवाल है कि क्या स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन फ्री कॉस्ट बेडसोर सर्जरी और रिहैबिलिटेशन में मदद करती है? हाँ, जरूर जरूरतमंदों के लिए ही है। जिसको भी कोई भी अगर जरूरत है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते सुविधाएं, तो स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन उनको जरूर मदद करेगी। आप हमें लिखिए, आप ऑनलाइन हमारा एड्रेस ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं या हमें मेल डाल सकते हैं। तो राघव जी ने एक वीडियो के बारे में बताया सुप्राप्यूबिक कैस्टर के लिए, तो ये और भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं क्लीन इंटरमिटेंट कैस्टराइजेशन के लिए। हाई प्रेशर ब्लैडर तब कहते हैं कि अगर आप ब्लैडर को ठीक से एम्प्टी ना करें और ब्लैडर में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और उससे ब्लैडर में प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, जिससे बैक प्रेशर चेंजेस किडनी में भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे। तो अब कविता जी काफी देर से कुछ पूछना चाह रही थे। कविता जी, अब आप एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर आपने ना मेरा स्पाइन का ऑपरेशन किया 4 मंथ पहले, तो अभी मैं ये पथरी का वो कर सकती हूँ? एक तो मेरे पेट में इन्फेक्शन भी है। हाँ जरूर, आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी जरूर हो सकती है। खाली इतना बताना चाहेंगे एक ऐसे सेंटर से करवाएं जहां उनको पता हो स्पाइन कॉर्ड इंजरी मैनेजमेंट का, क्योंकि कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड की। तो लाडू ऐसे क्यों हो गया? ये गॉल ब्लैडर सर्जरी बिल्कुल सेफली की जा सकती है। आपको अगर कोई विशेष सवाल हो तो जरूर हमें मेल भेज के या हमें फोन करके आप पूछेगा और जरूर इसका जवाब देंगे। राजीव ठाकुर जी हैज बीन वांटिंग टू आस्क अ क्वेश्चन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो सर। हाँ जी सर नमस्ते सर। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब 2014 को मेरा स्ट्रक्चर हुआ था। हाँ जी। तो मैं ऑपरेशन करने के बाद फिक्स्ड कैथेटर लगा दिया था। उसके बाद फिर 1-2 साल में फिर स्ट्रक्चर हो गया। तो लोकल मेरा जो डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, वो सजेस्ट किया था मेरे को जे कैथेटर रिमूव करने के लिए, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन हो जाता था बार बार। तो
दोबारा ज्वाइन करूं? तो डॉक्टर दिनेश सुमन, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आंसर? सर राजीव जी के लिए मैं कोई जवाब? सर बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए। तो उसके बाद मैं तो कॉन्डोम कैथेटर यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली 3 साल से अभी तक। तो अभी मेरा ये स्ट्रक्चर हुआ तो मैं क्या करूँ सर? स्ट्रक्चर ये ठीक करके CIC में कन्वर्ट हो या SPC करने से मेरा कौन सा अच्छा होगा? नहीं राजीव जी, आप आपके लिए डॉक्टर दिनेश सुमन जी को बता दें आपका लेवल क्या है इंजरी का। मैं D3 D4। ठीक। राजीव जी, आपके लिए जो आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इतने अभी जो हमने वेबिनार में डिस्कस किया, जो आपने सुना, हर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट के लिए कैथेटर इस्तेमाल करना लाजमी है, चाहे आप CIC कैथेटर इस्तेमाल करें या इंडवेलिंग कैथेटर इस्तेमाल करें। अगर कैथेटर के बिना आपको रिफ्लेक्स वाइडिंग परमिट करनी है तो वो आपके यूरोलॉजिस्ट आपका यूरोडायनेमिक्स की सेफ्टी देख के ही आपको बताएंगे। तो जब तक आपके यूरोलॉजिस्ट आपको गाइडेंस नहीं देते हैं, आपने अपने अंदाजे से अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है। ऐसा करके आप अपने ब्लैडर और अपनी किडनीज को रिस्क में डाल रहे हैं, अपनी सेहत के साथ आप अच्छा नहीं करेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप तुरंत यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यूरोडायनेमिक्स के लिए आए। आपकी यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन और आपकी कंडीशन को, यूरेथ्रा की कंडीशन को देख के आपके लिए क्या बेस्ट है, आपसे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे एंड देन बेस्ड अपॉन दैट वी विल गिव यू व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। ऐसी कंडीशंस में कोई एक तरीका सही नहीं होता, हर इंसान की इवैल्यूएशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें तरीका ढूंढना होता है और वो हम आपसे बैठ के डिस्कस करेंगे। Thank you, Dr. Dinesh Suman. Basuji wanted to ask, is 200 ml also considered high pressure bladder? Basuji, it's the pressure which matters. It's not the amount, but in a contracted bladder, if you have been using an indwelling catheter and if the bladder capacity has reduced substantially, then 200 ml can also lead to a high pressure bladder. So what Dr. Dinesh Suman stressed upon is the importance of urodynamic evaluation to see the pressures within the bladder and not only the volume. Am I right, Dr. Dinesh Suman? Absolutely, sir. Absolutely. And what to do in cold winter areas is what Dildar Ahmed ji has asked. Dildar ji, जहां भी रहते हैं आप, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लैडर मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक सेम रहते हैं। तो आपको लो प्रेशर ब्लैडर मेंटेन करना है और सेफ टेक्निक्स यूज करनी है एक अच्छे ब्लैडर एवैल्यूएशन के बाद। और जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपके लिए रिकमेंड किया है ब्लैडर मैनेजमेंट टेक्निक, उसको फॉलो करना है। अगर यूरोडायनेमिक्स में उनको दिखता है कि कोई डेट्रूसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया है जिससे प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो आपको मेडिकेशंस दे सकते हैं। हाइपर कंट्रैक्टाइल ब्लैडर है तो भी मेडिकेशंस दे सकते हैं, ताकि अल्टीमेट एम यही है कि सेफ किडनीज रहें, और वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, तो कविता जी आप पूछना चाहते हैं क्विक क्वेश्चन? हम काफी लेट हो गए, हमें वाइंड अप करना होगा वेबिनार, बट 1 or 2 लास्ट क्वेश्चन। हाँ कविता जी बताइए। यस सर। हेलो। हाँ जी बताइए, बताइए कविता जी। सर हाँ जी, मेरे स्टोन भी है और जस्ट मेरे पेट में इन्फेक्शन भी है सर, और अभी मेरी सर्जरी हुई है 4 मंथ स्पाइन की, सर्वाइकल आपने किया था सर। हाँ जी, आप चिंता मत करिए, आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी जरूर कर सकते हैं। आपसे हम अलग से फोन करके आपसे इसके बारे डिटेल्स देंगे। और कोई भी इन्फेक्शन? हाँ जी, इन्फेक्शन भी है। हाँ कोई नहीं, वो जब करेंगे आपकी सर्जरी तो वो पूरा मैनेज करके ही होगा, प्रॉपर वर्कअप और एवैल्यूएशन के लिए। कोई ऐसा रीजन नहीं कि इसको हम क्यों नहीं मैनेज कर सकें, ठीक है। कोई क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगा। हाँ, तो हम हमेशा कहते हैं कि जेली यूज किए, लेकिन एक श्रीनाथ जी हैं जो कह रहे हैं कि कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? डॉक्टर सुमन सर प्लीज। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह की जो जेली इस्तेमाल करनी है वो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। किसी भी तरह की इंजरी यूरेथ्रल कैथेटर के साथ अगर होती है और उसमें हम कोई ऐसा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जो ऑयल बेस्ड है, जैसे कि कोकोनट ऑयल है या पेट्रोलियम जेली है, तो इस तरह की चीजें वहां से छोटे छोटे क्रैक से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाके ऑयल एम्बोलिज्म कर सकती है। तो हमें सबको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हमने कोई भी ऑयल बेस्ड चीज अपने शरीर के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है।
शरीर के बाहरी हिस्सों पे लगाने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन शरीर के भीतरी हिस्सों में लगाने के लिए आपको वाटर बेस्ड चीजें ही इस्तेमाल करनी है, खासतौर पे यूरिनरी पैसेज में, क्योंकि वहां पे यूरिन यानी पानी की तरह से तरल पदार्थों को हैंडल करने के अलावा कोई बॉडी के पास मैकेनिज्म नहीं है उन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो कोई भी हमारे मित्र किसी भी तरह की और पदार्थ का इस्तेमाल ना करें अदर देन वाटर बेस्ड जेली। बहुत से लोग इसमें पूछते हैं क्या क्या, तो जिन लोगों में सेंसेशंस हैं उनके लिए लिग्नोकेन जेली सबसे अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड करती है। लेकिन जिन मित्रों में सेंसेशन नहीं है वो मेडिकल केवाई जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वाटर बेस्ड जेली होती है और इक्वली सेफ और स्टेराइल होती है। तो ये 2 जेली के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो आप मेडिकल रीजन से न इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर। एक लास्ट क्वेश्चन दिनेश जी, अनूप मंडल जी पूछते हैं कि मेरी बेली के राइट साइड में कंटिन्यूअस दर्द होता है, क्या ये यूरिन इन्फेक्शन से हो सकता है? बिल्कुल सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन और जांच के बाद ही कह सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप नियरेस्ट अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो कि आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, आपके पेन की रिलेशनशिप और बाकी टेस्टों के बाद आपको जरूर अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और ज्यादातर केसेस में यूरिनरी और बाउल प्रॉब्लम्स ही इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन लेट देम इवैल्यूएट फर्स्ट बिफोर वी कंक्लूड हियर। Thank you, Dr. Dinesh Suman. Proper evaluation, proper management, this has been the message which has come out loudly. Shivji ji and Komal ji, would you want to give one-liners, concluding statements for this session here for the benefit of our participants? Meanwhile, letting our friends know, they have said that please reply to the individual questions also. We will definitely reply to your questions. If you can also send us a mail in detail about your query, it will become easier for us to reply. तो अगर आपके कोई भी सवाल है आप जरूर हमसे लिखिए, सारों का जवाब जरूर मिलेगा। आपने जो आज भी पूछे उनका भी जवाब जरूर मिलेगा, हम उनको। देखिए, मैं अपने जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने ब्लैडर और बावल, खास तौर पे ब्लैडर का बहुत खास ख्याल रखें, क्योंकि लंबी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी तभी पॉसिबल है और जब आप स्वस्थ और बिना किसी इन्फेक्शन के रहेंगे तो आप जिंदगी में सब चीजों में हिस्सा ले पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई है, रिक्रिएशन है, घूमना है, काम करना है, सेक्सुअली एक्टिव होना है। यानी सारी जिंदगी आपकी इस बात पे आप कितना स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ आप तभी रहेंगे जब आपके ब्लैडर का आप पूरा ख्याल रखते हैं, समय से उसको ध्यान रखते हैं, उसके फॉलोअप्स करते हैं, और जो कुछ आज बताया गया है और जो पहले बताया गया है उस पे आप पूरी तरह से अमल करते हैं। थैंक यू सो मच। सर, मुझे सिर्फ लास्ट लाइन ये ही कहनी है जो डॉक्टर सुमन ने बार बार कहा है कि हर चीज टेलर मेड होती है। ये मेरे कपड़ा है, ये किसी और के काम नहीं आ सकता है। तो कोई भी चीज को आप वहीं तक लेके जाएं पूरी जानकारी के साथ, अपनी पूरी चीज बताकर, क्योंकि कुछ कोमॉर्बिडिटीज होती हैं हमारी, मतलब दूसरी बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से भी कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो अभी हमने जो आज बात की है वो सिर्फ ब्लैडर मैनेजमेंट की बात की है जो स्पाइन इंजर्ड पर्सन्स हैं, लेकिन हमने हर एक के बारे में बात नहीं की। ऐसे वेबिनार्स में ये नहीं होता पॉसिबल, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्टर की सलाह के बाद और बहुत कुछ जो उनके टेस्ट हैं उनके बाद ही करें। मेरी बात या शिवजीत की बात ना सुने, सिर्फ उतनी सुने जितना कि वो जनरल कमेंट्स थे, लेकिन आपकी और मेरी चीजें अलग हो सकती हैं, उनका बहुत ध्यान दीजिए। थैंक यू।
सर आप अनम्यूट कीजिए। सर यू आर म्यूटेड। Sorry. So, friends, there was a question on how you can contact us. So, if you just take a quick click here, you will know how you can contact us, the various ways that you can contact us, and we will definitely get back to us. So, दोस्तों, कैसे कांटेक्ट करें ये पूछा जा गया था। ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। आप जरूर अगर कोई भी क्वेरी आप कांटेक्ट करें। वैसे भी अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, डॉक्टर दिनेश सुमन, शिवजीत जी, कोमल जी विश्वविख्यात है, आपको बहुत सारे हिट्स मिल जाएंगे और उनको जरूर आप कांटेक्ट कर सकेंगे। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वेबिनार। I would only want to say that it will be our motto and philosophy to rise up to the challenge posed by spinal injuries, and we'll do everything that we can do to support the cause. So, मित्रगण, ये वेबिनार हम यहाँ खत्म करते हैं, बट ये आप जानते होंगे कि ये हम सबकी फिलॉसफी है, मोटो है, गोल है कि हम कुछ भी करें जिससे हम हमारे मित्रगण जिनको स्पाइनल इंजरी है उनकी मदद कर सकें। और इस पे आप आजमा के देखें। हम सबकी तरफ से बोल रहा हूं, बिल्कुल खरे उतरेंगे इस पे। तो क्या इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये पता नहीं था और इसलिए हम इस प्रॉब्लम में पहुंच गए। और ना खाली आपके लिए, आपको सारे अपने मित्रगण जिनको भी आप जानते हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद एक आप हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस से मुक्त रहें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मुक्त रहें और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन spread the message that it is very important to be aware about spinal cord injury management and preventing complications so that our friends with spinal cord injury can lead a happy and meaningful life, and they can live life king size to the fullest like Komal ji, Shivjit ji, and many of our friends across the globe live. Thank you very much for being with us. We are sorry we stretched. Dr. Dinesh Suman, who is the expert, will have the last word for this session. I'll say last word. Yeah, definitely, Dinesh ji. One last line. Safe bladder is healthy living. Remember, all my friends, safe bladder is healthy living, and I wish you all a very healthy bladder. Thank you so much. Thank you, Dr. Dinesh, and we will look forward to having Thank you so much, sir. For a subsequent webinar. Yeah. Friends, we have on next month on 4th December, हिंदी में बैक पेन मैनेजमेंट पे हमारा अगला वेबिनार है। बट डॉक्टर दिनेश सुमन जी चाहते थे कि हम सेक्सुअलिटी पे भी एक वेबिनार करें, फर्टिलिटी पे भी वेबिनार करें, तो आप जरूर जुड़े रहें। ऐसे कई वेबिनार्स की कड़ी चलेगी जिसमें आप इन चीजों के बारे भी और नॉलेज गेन कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। Oh boy. Oh boy. Oh boy.